Life is always challenging. You cannot say that कि अभी बहुत आराम से है. Somebody, in your age practicing like this, it's like a nightmare for people. Like sometimes when we tell that, अरे you practice bhakti, lust, anger, greed will go away. विश्वास है आपको इस पे? When you really experience pleasure, then only you can share with others. So what happens sometimes when a devotee gets a new boost up in Krishna consciousness, so he challenges Maya. Hey Maya, come on, now I am very strong. और वो क्या सोचता है, अगर माया मुझे कुछ किए, देखो ये प्रभु जी है ना, मेरे काउंसलर है ना, ये सब लोग देखो मेरे साथ चल रहे हैं, और ये बहुत आगे भाग जाता है. देन क्या होता है, माया का एक बुलेट आता है, माया एक बुलेट मार के फेंकती है इसको, धाक से इसको लगता है, और ये बोलता है ए माया मेरे को गोली मारी तू, और पीछे देखता है प्रभु जी देखो तो, देखता अकेला खड़ा हुआ है. So I will briefly tell the introduction of His Grace of Sauri Chaitanya Prabhu. Prabhuji is passed out from NIT Rourkela. He did his BTech with honor, and he passed out in 2012. And after that, Prabhuji worked with CA Tires, and Prabhuji did is a member of national level team in All India Children's Science Congress 2006, and presented a thesis on effect of pesticide on plants. And the team got recognition from our former president, Dr. APJ Abdul Kalam. And he was very active member of our Vice Club. Actually, Prabhuji is played very vital role when he was there in Vice, like during his BTech days in NIT Rourkela, and like formation of CQ, Vice Club that time. Now it is CQ. So he played very vital role at that time. This Prabhuji gave many seminars, more than 100 seminars on the topic like power of habits, mind control in various cities all over India. And Prabhuji has keen interest. Now we'll see Prabhuji's class in reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Later on, Prabhuji joined full time in the year of 2015. Full time ISKCON. And later on, 2016. Prabhuji is very dear disciple of His Holiness Gopal Krishna Maharaj, and the ISKCON Navi Mumbai Kharghar project is very dear to His Holiness Guru Maharaj. And 2016 Prabhuji, after 15 Prabhuji joined ISKCON, and 16 Prabhuji by the order of his spiritual master, he shifted to Navi Mumbai. Actually, that time, that phase of ISKCON Kharghar was very challenging. That time they shifted there. And it was very challenging. Nobody wanted to go there because Pune was very comfortable and very vibrant, and Navi Mumbai was not so much. But now because of the team and Prabhuji was also there. Now the Kharghar is now growing very nicely. So that's why Prabhuji was recognized many times by Guru Maharaj, His Holiness Gopal Krishna Maharaj. And Prabhuji is now leading there many departments. Mainly, he is in charge of Sankirtan department. Along with that, Prabhuji is doing youth preaching, congregation preaching, and many levels. So we are very fortunate to have. Like one thing I can tell Prabhuji about my personal experience. Like Prabhupada give example, like iron if you keep it in fire, it become fiery. Like when you associate with Prabhuji, is a fire of enthusiasm. So you will be enthusiastic automatically. You will be burnt out. It's my experience. Whenever I meet Prabhuji's charge is like this, you become enthusiastic. Like Prabhuji pura hila dete hai pura. So this was my personal experience. Prabhuji very missionary. Prabhuji is very enthusiastic. So we are very fortunate. So I request Prabhuji, whenever Prabhuji is actually staying in Rourkela. His home is in Rourkela. Still he stayed in Vice. It was very challenging that time. He was not known to home. After his he passed out from college. The parents came to know that he was staying. So it was very challenging to stay in Vice after having home in Rourkela city itself. So we are very fortunate to have his association over there. And we request whenever Prabhuji come here, he give his valuable time. He is very busy.
So, I'd like to welcome Prabhuji while Lord chanting 3 times. थैंक यू। जय श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। Some other, this movement is like that. It's like fire. When you enter into fire, you become fiery. And sometimes by that fire, we burn down also people. So don't enter into that fire with, be cautious. हाँ, वो लगा रहता है ना बोर्ड, डेंजर। तो इसलिए साधु के पास ज़्यादा नज़दीक आने से जल भी सकते हैं। फिर वो बम फोड़ देगा सिर पे, फिर आप बोलेगा अरे यार हैवी हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सावधान रहिए anyhow. But you are very fortunate that you are in association with two very nice stalwart devotees, Vishwakirti Prabhu, Deepak Janan Prabhu. They are very good and sincere, dedicated devotees. हम लोग थोड़ा बिगड़ गए हैं खारघर जा करके। थोड़ा पुणे ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। इनफैक्ट राधेश्याम प्रभु इज कमिंग टुमारो, सो दैट इज समथिंग रियली वेरी अमेजिंग प्लेस टू प्रैक्टिस भक्ति, स्पेशली इस्कॉन पुणे। इफ यू आर कनेक्ट टू पुणे, you know, earlier time 10 years back, if you are going anywhere and you tell that I am from ISKCON Pune, तब तो आपको एक स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। अरे आइए आइए प्रभु जी, आप आइए। इवन यू गो टू टेम्पल एंड यू आर जस्ट यू नो वॉइस डिवोटी, दे विल सीट यू इन व्यासासन, प्रभु जी आप क्लास दीजिए। इतना सम्मान। हम बोले वाह यार, नाम से ही काम चल जाता है। सो एनी बट बाय गुरु मार्च ऑर्डर वी केम टू खारघर एंड यस इट वाज चैलेंजिंग, नाउ ऑल्सो इट्स चैलेंजिंग। लाइफ इज ऑलवेज चैलेंजिंग। यू कैनॉट से दैट कि अभी बहुत आराम से है। एक व्यक्ति भी बता दो दुनिया में जो बोलेगा अभी मैं शांति से हूँ आराम से, कोई नहीं, हो ही नहीं सकता, बिकॉज माया इज ऑलवेज देयर। सो वी हैव टू कीप फाइटिंग। सो टुडेज क्लास, एज प्रभुजी रिक्वेस्टेड मी, विल बी मोर फोकस ऑन प्रीचिंग in this age of Kali Yuga. And so I was recently reading about Prahlad Maharaj. So my talk will be based on Prahlad Maharaj inspiration only. But I was very deeply inspired by his character, his qualities, and his commitment, you know, to preach despite odd situations. And especially we are young, so we have different challenges. We have many challenges. In fact, somebody, you know, in your age practicing like this, it's like a nightmare for people. Yesterday I went to one house, we did one kirtan there. So there that owner, they were just looking at us, how can you remain like this? आप लोग ये भगवाधारी पहन करके आप जीते कैसे? आप लोग मतलब जी रहे हैं ना, देख रहे हो सामने, अभी तो जिंदा है ना, और 15 साल से जी रहे हैं। तो पीपल आर, यू नो, दे जस्ट कांट इमेजिन कि आप ऐसा जीवन जी सकते हो। But Srila Prabhupada did it. Srila Prabhupada proved to the world that yes, we can live a life of goodness and we can practice bhakti. In fact, the way he converted, you know, people, if you read their lifestyle, their transformation, my God, this is like amazing. Height of it. How can people transform so, you know, from such a dirty environment to such a golden, like, you know, people and such pure-hearted people. So you see, this transformation happens because spirituality has substance in it. First of all, we must have faith in what we are practicing. If you don't have faith in what you are practicing, you will have, you know, some doubts. Even in the course of practicing bhakti, you'll think पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा मेरे से। ये like sometime when we tell that अरे you practice bhakti, lust, anger, greed will go away. विश्वास है आपको इस पे? मुझे भी नहीं अभी तो हो रहा है पूरा। इतना आसान नहीं है ये, बिकॉज द फोर्सेस, यू नो, द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि बेचारा जब वो दुनिया में आता है आदमी तो सोचता है कि अरे यार ये मुझसे नहीं होगा, ये इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सो मेनली यूथ, अभी हम लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई में वेन एवर अ यूथ बॉय कम्स ना, तो पहला अपना वो पिछला कहानी बताता है हम लोग को 1 घंटा बैठ करके, एक प्रेम कथा। वो बेचारा पूरा रोएगा धोएगा, और हितेमात, पहले मैं उनको हितेमात के पास भेजता हूँ, फिर उसको फिल्टर करते हैं, वो उसका पूरा रोना धोना सुनते हैं, फिर वो मेरे पास आता है, फिर मैं उसको सॉल्यूशन बताता हूँ, ये लो। हाँ, जैसे आप डॉक्टर के दवा जाते हो ना, तो पहले कोई एक कंपाउंडर या कोई ऐसा चेक करता है आपका बीपी शुगर कितना है, तो ऐसी हम लोग भी प्रीचिंग करते हैं। सो मुंबई इज लाइक दैट। एनी पर्सन, एनी यूथ यू टेक, उसका कुछ तो कहानी रहेगा, और जब वो अपनी कहानी बताता है तो लगता है सेम कहानी। मैं आजकल तो ऐसा हो गया कि वो आके बैठता है, मैं बोलता हूँ ये प्रॉब्लम है
रियली परसों परसों ही जो है एक माय मदर इज कॉलिंग, टेल विल कम। सो एक फैमिली, एक माता पिता अपने बच्चों को लेके आए और वो बैठे, हमें इसको इस्कॉन में जोड़ाना है। और मतलब आपके लिए आपका क्या है? नहीं हमारा ठीक है, इसको जोड़ा दो। तो वो ऐसे बैठा एकदम मुंह लटका के ऐसे। मैं समझ गया ये प्रॉब्लम चल रहा है लाइफ में। हाँ आपको कैसे पता? मैं बोला बहुत आ रहे हैं ऐसे। तो ये चलता ही रहता है। सो पॉइंट इज दैट ऑल ऑफ अस वी आर somehow other having same problem, and anybody who is in this material world they have the same problem, lust, anger, greed, envy, illusion, pride। ये जो 6 अनर्था है, अभी सबसे पहले हम लोग का यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और इसको ही झेलते 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 हम लोग जो है ये पूरा जिंदगी बीत जाता है। नाउ इफ यू कंपेयर विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दीज पीपल they may seem to be very happy with it. It may seem that we are struggling and this person is so happy, but you see that now you are struggling. Suppose a person is having cancer, suppose, and so this person is neglecting। अभी वो आराम से खा रहा है, पी रहा है, सब कर रहा है, पर अंदर ही अंदर वो बढ़ता जा रहा है। तो जब वो बड़ा बन के बाहर निकलेगा ना, तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। और एक व्यक्ति होगा जो इनिशियल स्टेज 1 में ही जो है उसको दवाई लेगा, केमोथेरेपी लेगा, कुछ भी लेगा, उसको ट्रीट कर देगा। तो दुनिया क्या देखेगी? अरे इसको तो स्टेज 3 था और ये तो बिंदास घूम रहा है, और स्टेज 1 वाला तो बेचारा दवाई खा रहा है, ये कर रहा है। तो दुनिया ऐसे देखेगी, पर उनको पता नहीं है ये स्टेज 1 वाला क्योर होकर के बाद में अच्छे से जिएगा, बाद में इसकी लॉन्जिविटी बढ़ जाएगी, ये 50 साल और जिएगा। और स्टेज 3 वाला 2 साल का मेहमान है, ये अभी जस्ट थोड़ा समय रहेगा, खाएगा पिएगा करेगा और खत्म ना लाए। लाइक माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, वो MD है यहाँ पर। तो मुझे कल ही बता रहे थे, तो उसके पास जो पेशेंट्स आते हैं एक से एक महान पेशेंट होते हैं। तो डॉक्टर दवाई कुछ देगा, वो अपने मन से कुछ खाएंगे। तो वो उनको बोलता है आप 5 साल के मेहमान हो, अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। आप 5 साल जियो खाली, फिर मेरे को मत बोलना। और बोला ये बात मैंने 5 साल पहले बहुतों कही थी, वो आज नहीं है दुनिया में। So point is that we are people who are taking cure. First we have recognized the disease, we have recognized the problem, and now we are taking treatment. So it may appear to people that अरे ये लोग तो बेचारे देखो एकदम रेस्ट्रिक्टेड है, कोई जीवन में आनंद नहीं है इनके, एनिया उनको पता ही नहीं आनंद क्या है। हाउ ब्लिसफुल वी आर। अभी कोई सुबह 7 बजे आके ठंडी के मौसम में देखिएगा, आप लोग पसीने में लबालब हो रहे हो, वो बोले क्या है ये तो गजब है, ये आनंद है। नाउ वी जस्ट वेंट टू वृंदावन। अभी वृंदावन हम ऑलमोस्ट 100-120 ड्यूटीज वर देयर। तो जब वो लोग वहाँ रमन नीति में लोटपोट हो रहे हैं, कूद रहे हैं, सड़कों पे नाच रहे हैं, अमीर अमीर घर के लोग हैं एकदम। और हम लोग तो जहाँ भी जाए कीर्तन, हमारा तो वही है, अपना ढपली ले लो और अपना वो ले लो, बजाओ, जहाँ भी रुको कीर्तन 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 कर रहे और नाच रहे पागलों की तरह वहाँ पर सड़क। जो लोग कभी ऐसे रोड पे निकले नहीं होंगे, जो लोग ऐसे लोग आते, बिकॉज कांग्रेगेशन पिचिंग रहता है तो थोड़े हाईफाई लोग रहते हैं सब। सो बट वो जो जॉय है, दैट जॉय व्हेन दे एक्सपीरियंस, दे टोल्ड अरे दिस इज समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। कुछ लोग का तो ये हाल हो गया कि अभी मुंबई वापस आके बोलते हैं मन ही नहीं लग रहा, पूरा काम धाम चौपट हो गया एकदम। मैं बोला कृपा हो गई तुम पर राधा रानी की, यही तो होना चाहिए था। सो दैट इज रियल जॉय, बिकॉज पीपल आर नॉट एक्सपोज टू रियल आनंदा, रियल प्लेजर। दैट्स व्हाई दे सी दैट वी आर स्ट्रगलिंग, वी आर, देखो बेचारे, जैसे समटाइम व्हेन सम पीपल दे सी अस brahmachari, especially grahasthas when they see us, because I am more into congregation preaching also, so they think बेचारे ब्रह्मचारी पता नहीं क्या खाते होंगे और क्या, लाइक मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो क्या खाते होंगे? So I took one chemistry professor with me for this preaching। तो हम एक साथ सीट बुक करते हैं पूरे, ऑलमोस्ट 85 ड्यूटीज थे हम लोग जब वृंदावन जा रहे थे मुंबई से। सो वो आके बैठा, हम कुछ प्रसाद लेके नहीं गए, हम लोग एटलीस्ट जो टेम्पल ड्यूटीज थे। सो ही टोल्ड प्रभु जी इतना तपस्या कर रहे हो आप लोग, कुछ खाओगे नहीं? बोला आप थोड़ा वेट करो। तो बोला अरे प्रभु जी कुछ प्रसाद लिया नहीं आप लोग, कैसे कल सीधा वहाँ जा करोगे, ये कैसा यात्रा है? बोला अरे वेट तो करो। तो हम लोग वहाँ थोड़ा बैठे, इसमें ट्रेन में आरती थोड़ा कीर्तन उतर किए, फिर हमने बोल दिया अब प्रसाद करेंगे। बोला बट है कहाँ? बोला अभी वेट करो। तो ये कांग्रेगेशन लेके आया, प्रभु जी आपके लिए रोटी सब्जी, ठीक है। तो बोला अरे वाह ये तो मस्त है।
तो उसमें 8-10 पराठे थे और कुछ सब्जियां कुछ थी। एक आया, फिर पीछे से और एक आया, प्रभु जी ये मेरे घर से आपके लिए राइस। फिर पीछे से आया, प्रभु जी ये मैंने पनीर सब्जी बनाई है। ऐसे करके वहां पूरा प्रसाद का पूरा भंडार लग गया, अन्नकूट हो गया, गोवर्धन जैसे लगता है ना फेस्टिवल। सब जितनी फैमिलीज आई है तो सब अपने घर के लाए और थोड़ा हम लोग के लिए लाए कि प्रभु जी खाएंगे जैसे मैं खाऊंगा सारा। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, वो उस प्रसाद में, वो कंपार्टमेंट में पूरा प्रसाद भरे जा रहा है। बोला प्रभु जी कहां से आ रहा है ये सब? मैं बोला कृष्णा भेज रहे हैं। मैं बोला था ना आपको विश्वास रखो आएगा। तो बोला आपको एक्सपीरियंस नहीं है। बोला मुझे पता है प्रसाद आएगा। एवरी फैमिली दे ब्रॉट समथिंग प्रभु जी आप लोग के लिए। और इतना प्रसाद खाया वो व्यक्ति उस दिन, रात को पूरा पेट पकड़ के, प्रभु जी बहुत ज्यादा हो गया आज। अब तो मैं बोला मतलब बाथरूम बगल में ही है तो आप चिंता मत करो, लेकिन अभी तो शुरुआत है और देखो भी क्या होता है आगे। पॉइंट इज दैट पीपल थिंक दैट हम बेचारे हैं और हमको लगता है ये बेचारे हैं, समझो। सो पॉइंट इज दैट व्हेन यू रियली एक्सपीरियंस प्लेजर, then only you can share with others, when you really experience pleasure. So first of all, to experience that pleasure, we have to know our challenges and we have to know that we are in the process of purification. But that doesn't mean that we will not tell others about this purification. It is not that. Like suppose अगर कोई व्यक्ति बीमार है और वो चाहता है कि उसको अच्छा ट्रीटमेंट मिला, तो वो जब अपने गांव जाएगा या कहीं जाएगा तो बताएगा ना, अरे इस डॉक्टर को दिखाना, ये बड़ा अच्छा डॉक्टर है। वैसे ही हम लोग है, वी आर स्टिल पेशेंट्स। वी कांट क्लेम दैट कि अभी हम एकदम मुक्त जीवात्मा हो गए, हमारे पंख निकल गया, मुड़ रहे हवा में एकदम, ऐसा हम नहीं बोल सकते अभी। या वी आर नॉट ट्रबल्ड बाय लस्ट एंगर ग्रीड, ऐसा नहीं है, हम वी आर ट्रबल्ड। बट एट द सेम टाइम द ट्रीटमेंट वी आर टेकिंग, वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इट वर्क्स, ये काम करता है। वी कैन कॉन्फिडेंटली से दैट। इतना मैं तो अभी बोल सकता हूँ कि जो 15 साल में हमने देखा है अपने जीवन में, जो जब हम एकदम यंग थे और हम भक्ति में आए थे, उस समय हमारी थिंकिंग, हमारा अप्रोच, आवर मैच्योरिटी, वॉट एवर, नाउ आफ्टर 15 years it has significantly increased by Krishna's mercy. We have seen that, and we have seen to handle situations, the vision of life, everything is so clear, so clear. Now I'm telling you, one of the biggest problem in this world is people who are retired and who are now in home. जो रिटायर होकर घर में बैठ गए और उनको कुछ काम धाम नहीं है घर में, वो बेचारे अभी मोस्ट मिजरेबल स्पीसीज इन दिस वर्ल्ड है, क्योंकि कुछ काम धाम तो है नहीं उनको। और घर में आजकल की जो बहुएं आ रही है उनसे जो झगड़ा हो रहा है उनका, अरे बाप रे बाप। दैट्स व्हाई इन मुंबई नाउडेज दे डोंट टेक 1 फ्लैट, अभी 2 फ्लैट बुक करते हैं वो लोग। क्योंकि आजकल जो भी लड़की अपना सीवी बनाती है, या सीवी बोलेंगे, या जो भी वेडिंग के लिए जो अपना बायोडाटा बनाती है, उसमें पहले ही लिखती है 2 कंडीशन, किचन में नहीं घुसूंगी और दूसरा माँ बाप के साथ नहीं रहूंगी। ये आप देख लेना, ये कंडीशन लगा के आजकल लोग शादी करते हैं। तो इसीलिए आजकल मुंबई में कॉन्सेप्ट आ रहा है कि लोग 2 फ्लैट खरीदते हैं आमने सामने, एक माँ बाप रुकेंगे, एक में हम रुकेंगे। या तो माँ बाप गाँव में रहते हैं और या तो जमता ही नहीं है, बिल्कुल जमता। अभी आपके लिए लग रहा होगा बहुत नया है, लेकिन आप भी शायद शादी करोगे, शायद, अगर अगर आप समझ। एनी हाउ, आई एम नॉट एनकरेजिंग दिस थिंग, बट आई एम एनकरेजिंग ऑल्सो, बिकॉज एक्चुअली अगर आप लाइफ को सही से देखोगे तो इफ यू हैव कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, तो वो लाइफ को पूरा बैलेंस कर देता है। पूरा आपका जो बर्थ से लेकर के डेथ तक पूरा प्रोग्राम बन रखा है कृष्णा कॉन्शियस में, पूरा प्रोग्राम। एंड आप बाहर जाके देखो मटेरियल वर्ल्ड में, इनके पास एक पॉइंट के बाद कुछ है ही नहीं करने के लिए, सब घूम रहे से क्या करूं। अभी कितने लोग हमारे मंदिर में आते हैं जो रिटायर हो चुके हैं, और वो लोग अपने जमाने में दे माइट बी CA और बिग IT प्रोफेशनल, बट नाउ दे आर रिटायर्ड और एंड दे आर सिटिंग आइडली इन होम, कुछ करने को नहीं है। पीपल आस्किंग कि हमको 3 घंटा के लिए कुछ सेवा में लगा दो, कुछ तो लगा दो। एंड समटाइम्स देयर चिल्ड्रन आर कमिंग दैटिंग कि आपके यहाँ वृद्धालय है क्या, मतलब वृद्धाश्रम है क्या, आप इस्कॉन में रखेंगे क्या इन लोगों को। मैं बोला अरे यार, मैं पहले जब नया नया था तो मैं सोचता था देख कितने अच्छे बच्चे हैं, माँ बाप को भक्ति में लगा रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो मुझे कोई बताया प्रभु जी भक्ति में नहीं लगा रहे, वो अपना टेंशन दूर कर रहे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन भक्ति एंड ऑल, दे आर इंटरेस्टेड कि अभी ये लोग घर पे बोझा बन गए मेरे ऊपर, अब इनको निकाल के मंदिर में लगा दो, तो अब आप संभालो इनका दवाई पानी खर्चा पानी। दैट वाज देयर थिंकिंग। सो पॉइंट इज दैट व्हाई इट हैज हैपेंड, बिकॉज दे हैव नॉट अंडरस्टूड the goal of life, and they are really now
वेरी ब्लाइंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, क्या करें अभी। तो ये स्थिति हमारी ना हो, उसके लिए आप जो अभी ट्रेनिंग ले रहे हो, वॉट एवर ट्रेनिंग टेकिंग ना हो, ये आपके पूरे जीवन को प्लान कर देगा। Yes, and you see on the other hand, a Krishna conscious devotee, he has nothing. Like I know some families whom I am preaching to. So these families, they have told their children, till the time we are married and till the time I sufficiently earn for you, I am there with you. After that, मैं जा रहा हूँ टेम्पल, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अभी मेरे ऐसे कांग्रेस में 2-3 फैमिली हैं जो रिटायर होने वाले 2 साल में। सो दे हैव क्लियरली टोल्ड द चिल्ड्रन, बाबा जस्ट 2 साल और, जितना हमको लूटना लूट लो, या जितना हमको टेंशन देना दे लो, बट आफ्टरवर्ड्स आई एम नॉट देयर फॉर यू, इन द सेंस कि आई विल नॉट बी इन होम, आई विल बी इन टेम्पल एंड आई विल फुल टाइम आई विल सर्व इन टेम्पल। So this is a revolution in in this society, which is very much. You will appreciate this as you move forward in your life. Anyhow, for the current life, especially youth, और youth तो बाप रे बाप, वो तो जिंदगी देखा ही नहीं, उससे पहले बर्बाद करके बैठा है। He has not seen life till now, and he has spoiled it before that only. So I teach in MGM college also there. So there is a course called UHV, Universal Human Values. So now these colleges are approaching ISKCON to teach a course on that. So we are developing a course, and we go to colleges and we teach them 2 hours these courses. So there when we talk about these things, many these children, not children, these boys and girls, they come and they tell, अरे हमारे घर में तो बहुत हालत ख़राब है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। और हम पहले ही दिन उसको बोल देते हैं, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो हमने कितने ब्रेकअप करना इसका ठिकाना नहीं है। रियली कितने ब्रेकअप। अभी जैसे हम लोग लास्ट जब वृंदावन से वापस आए तो हम लोग कैब बुक किए बांद्रा स्टेशन से अपना मंदिर जाने के लिए। तो जब स्टेशन में हम लोग कैब में बैठे ही थे, मैं और हृदय माधवपुर और सासो थे, तो जो ड्राइवर था वो भी एक लड़का नौजवान था, गाड़ी चला रहा था, और वो फोन में कुछ तो बात कर रहा था वगैरह। तो हम लोग बोले जल्दी चलिए, आज के पास मेरे कॉल मत करना, नॉनसेंस रख दिया, मतलब ब्रेकअप। और बेचारा वो पूरा जब रास्ते में चला रहा था ना, मैं बोला बस इस भगवान पहुंचा दे, क्योंकि इसका माइंड जो है अभी पूरा टेंशन में था वो एकदम। वो समझ में आता ना देख करके, तो पूरा चिल्ला रहा है, भड़क रहा है लोगों पे, किसी गाड़ी को कुछ टच हो जा रहा है तो एकदम गाली बक रहा है, ये कर रहा है। इतना एंजाइटी में था वो व्यक्ति, और वो ड्राइव कर रहा था। मैं बोला अरे यार कितना टेंशन में ये। और जितने मोस्टली जो लोग हमारे पास यूथ आते हैं मुंबई में, वो तो ये ब्रेकअप वाले ही होते हैं। रियली एक लड़का तो बेचारा ऐसी, वो अपनी गर्लफ्रेंड जो है उसकी इतनी डोमिनेटिंग थी उसके ऊपर, इतनी डोमिनेटिंग थी कि वो मंदिर भी जा रहा है तो उसको पूछ के जाना पड़ता था, जाओ मंदिर, हाँ जाओ, 5 मिनट खाली, हाँ खाली दर्शन करना। तो दर्शन करने के लिए आया 5 मिनट के लिए, बट वहाँ कीर्तन चल रहा था, ऐसे जैसे आप लोग डांस कर रहे थे, तो ये भी घुस गया, कोई खींच लिया, घुमा दिया। अब इसको तो पूरा हिंदवा हिल गया, अरे यार तो गजब है, बड़ा मजा आ रहा है। ये आनंद तो मेरे को कभी सेंट्रल पार्क में भी नहीं आया, क्योंकि हमारे मंदिर के बगल में सेंट्रल पार्क है। तो कई बार वहाँ लैला मजनू आते हैं तो मैं उनको बोलता हूँ ये गलत जगह आ गया, एड्रेस गलत हो गया, उधर बगल में उधर जाइए। हमारा भी पार्क है ना, यहाँ हमारे टेम्पल में पार्क है, तो वहाँ पार्क के बैठते तो मैं बोलता हूँ बगल में जाइए, ये आपको गलत एड्रेस आ गया आप लोग। सो पॉइंट है, ये आ गया, ये नाच रहा है, 1 घंटा बीत गया, और वो वहाँ से इसको फ़ोन लगाई जा रही है, 5 कॉल चला गया, 5 कॉल वो हो गया। तो ये फ़ोन उठाया, फिर बाद में वो हाँ बोलूँ ये वो तुम 1 नंबर के ये हो भाई, मैं यहाँ वेट करी तुम्हारे नहीं रहे। ये बोला इतना पनौती है ये, बोला जा और नहीं आऊँगा, भाड़ में जा तू यहीं से। वहीं मंदिर दरवाजे खड़े होकर के उसी ने उसको बोला, क्योंकि उसको ये प्लेजर मिल गया ना, जब वो यहाँ वो सुख देखा तो लगा यार इतना इस खर्चा करो इस डायन के पीछे, एक तो इतना पैसा खर्चा करो, ऊपर से इसके नखरे सुनो, और ऊपर से प्लेजर भी नहीं आता, मजा भी नहीं आता, और ये देखो यहाँ कितना आनंद है। ये मुंबई की टिपिकल कहानी है ये। फिर वहाँ तो गया, अब हमारे ग्रुप में आ गया, उसको फिर हम भी धो धा के पूरा ठीक कर दिए, एकदम क्लास दे गए। और आफ्टर सम टाइम जो है फिर एक दिन बोलता है प्रभु जी बहुत याद आ रही है। फिर आके मायूस चेहरा बैठा के मेरे सामने बोलता है प्रभु जी क्या करूँ, बहुत याद आ रही है अभी। बोला किसकी याद आ रही है? अरे उसकी। मैं उस समय तो जोर से बोल दिया प्रभु जी, लेकिन अब मैंने बोला अभी कंटिन्यू करो। सो पॉइंट ऐसा ही होता है। मैं ये क्यों बोला आपको, व्हेन वी कम टू कृष्णा कॉन्सेप्ट, दैट इनिशियल प्लेजर जो आता है वो हमको एक बूस्ट देता है, एंड देन दैट प्लेजर वी थिंक अब तो मैं दुनिया को पूरा
फाड़ दूंगा एकदम, ये कर दूंगा, आई एम द मैन, नाउ आई हैव अंडरस्टूड द रियल गोल ऑफ लाइफ, एवरीबडी एल्स इज माया एक्सेप्ट मी, आई एम फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस नाउ, एंड वी थिंक दैट एक हफ्ते में बैक टू गॉडेड प्लान, बीटीजी प्लान ऐसा जोश आता है, हमारे अंदर से था। तो उसमें हम लोग फिर कई बार लोग जन्माष्टमी पूरा फास्टिंग कर देते हैं, एकादशी फास्टिंग कर देते हैं, एक हफ्ता होता। But then, so one devotee was telling me, so what happens sometimes when a devotee gets a new boost up in Krishna consciousness, so he challenges Maya, and he tells to Maya, "Hey Maya, come on, now I am very strong." So what has happened actually? This man, he's in association with devotees, and because he's in association with devotees, so he's getting that charges. अभी आप लोग हो, now I think अभी आपको माया का कोई असर नहीं पड़ रहा होगा, बिकॉज आप भक्तों के संग में हो, कीर्तन चल रहा है, भगवान सामने हैं, सब डिवोटीज हैं। सो देन वी स्टार्ट थिंकिंग, अरे आई कैन चैलेंज माया। तो वो माया पे ना शूट करता है, डिच 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 करके मारता है गोली, मतलब इन द सेंस हरे कृष्णा कर करके, है ना अपना बंदूक। तो उसको लगता है देखो मेरे को कुछ नहीं हुआ, देखो मैं माया से जीत गया हूँ, ऐसा मन बोलता है, ठीक है। और वो क्या सोचता है, अगर माया मुझे कुछ किए, देखो ये प्रभु जी है ना, मेरे काउंसलर है ना, ये सब लोग देखो मेरे साथ चल रहे हैं, और ये बहुत आगे भाग जाता है। देन क्या होता है, माया का एक बुलेट आता है, माया एक बुलेट मार के फेंकती है इसको, ठाक से इसको लगता है अरे बाबा, और ये बोलता है ए माया मेरे को गोली मारी तू, और पीछे देखता है प्रभु जी देखो, तो देखता अकेला खड़ा हुआ है। अब शूटिंग शुरू हुआ वहां से, धाट 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 धाट, ये बेचारे रे बाप ऐसी पावरफुल है ये। दैट्स वाई वॉट एवर स्ट्रेंथ वी आर गेटिंग नाउ इन भक्ति, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। डोंट थिंक वी हैव बिकम सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग and we can just deal with Maya. No, it's an illusion. It's an illusion, complete illusion. Whatever pleasure you are getting in bhakti, whatever, even little bit, that is only because you have agreed to be in association of devotees. That's why Krishna has given you that pleasure. Otherwise, you just move out of this place. It's matter of some time. And I am telling this after practicing 15 years of bhakti, whatever sincerity, whatever I may have, but I have somehow realized this point that without devotees, we are nowhere. And we are nothing in front of Maya. Nothing, 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 nothing. वो ऐसा चटनी बना देंगे ना एक मिनट में ना, कि हमारा फिर कोई बोलेगा हाँ थे एक प्रभु जी, एक थे बढ़िया मृदंग बजाते थे, मुझे याद आ ऐसे एक थे प्रभु जी, है ना। सो हम ऐसे अतीत के एक वो बन जाएंगे भक्त। सो पॉइंट इज दैट, so first of all protect yourself and be solidly connected with devotees, not just artificially, heartily. It should be so strong that we just can't survive without devotees. So that's probably told that my home was here, so Raurkela, but they were very, now they are very favorable, now to sab bahut ठीक हो गया, but at that time it was very shocking for them, that कि अरे ये व्यक्ति क्या कर रहा है। स्पेशली आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी विद लाइक दे बिलोंग टू वेरी वेल्दी फैमिली एंड ऑल, मारवाड़ी फैमिली है, बिजनेस पैसा ये वो सब चीज़ें, इनका दिमाग इसी में घूमता रहता है, कितना कमाए कितना कमाए कितना कमाए, हर दिन खाली यही चलता रहता है। सो एट दैट टाइम इवन आई एम टेलिंग यू नाउ द करंट सिचुएशन इवन इन कंट्री ऑल द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ राइजिंग ऑफ सनातन धर्मा, it is even good. Now see, when we move in saffron, it is very normal for people, especially because of our honorable chief minister. One thing he did very good, उन्होंने सैफरन को बड़ा प्रमोट किया, ये बहुत अच्छा है। बिकॉज एक सैफरन व्यक्ति अगर ऐसा पोजीशन में बैठता है ना, तो फिर दुनिया समझती है अरे हाँ ये लोग भी कुछ कर सकते। नहीं तो पहले सैफरन देखने से मतलब भिखारी लोग हैं, कुछ तो मांगेंगे अभी। रियली इतना, आप 10 साल पहले 10-15 साल पहले अब बता रहा हूँ, ये सैफरन कपड़े के बहुत बेइज्जती होती थी, मतलब इन द सेंस। एंड ये भी था कि कई साधुओं के भी उल्टे पुल्टे काम निकल के आ रहे थे, और एक्सपोज बहुत होता था। एक्चुअली अभी ये अलग टॉपिक है, बट यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि सनातन धर्म को डाउनट्रोडन करने के लिए कितना षड्यंत्र रचा गया, आपको पता भी नहीं है इसके बारे में। हमारे टेक्स्ट बुक से लेकर के बॉलीवुड की फिल्म तक सब चीज में इसको दिखाया गया कि ये बहुत नीचे है, बहुत गिरा हुआ है, ये बहुत गिरा हुआ है ये। दैट्स वाई व्हेन आई
when I understand about this, my appreciation for Prabhupada increases far more. Just imagine Prabhupada, 1967, जिस समय की यहाँ की जो सरकार थी वो भी एकदम मैंने अपने इंडियन कल्चर और इंडियन उसको एकदम बैकस्टेप पे लेके चली गई थी। और वर्ल्ड में तो जो चल रहा था तो नया नया जो ये सब टेक्नोलॉजी आ रहा है, अब लोग बोर हो चुके हैं टेक्नोलॉजी। मैं रियली आपको बता रहा हूँ, ठीक है अब और एडवांसमेंट हो रहा है, बट पीपल हैव बिकम फ्रस्ट्रेटेड विद दिस टेक्नोलॉजी एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन। कितना एंजॉय करोगे भाई, वही तो बॉडी, और कितना एंजॉय करोगे। तो लोग फ्रस्ट्रेट उस समय लेकिन नया ना, इवन इंडियंस में भी उनको कोई एक फिरंगी दिख जाए, बस कोई एक फॉरेनर दिख जाए ना, वो लोग तो दे वुड गो मैड, कैसे देवता उतर गए। ऑफकोर्स उनके लिए देवता उतर के आ गए एकदम, एंड दैट्स व्हाट Prabhupada did when Prabhupada brought American disciples to India. Just to see them, 10,000 people would come, not to hear lecture. ऐसा नहीं है कि Prabhupada का इन्फ्लुएंस था, बट वो क्रॉस मैदान में जो फेस्टिवल होते थे, दे वुड नॉट कम टू सी साधु और हियर फ्रॉम साधु, वो तो बहुत सुन चुके, बट टू सी फॉरेनर्स डांसिंग इन धोती कुर्ता, फॉरेनर्स डांसिंग इन साड़ी. वन टाइम Prabhupada was sitting in ऐसे मुंबई क्रॉस मैदान में, एंड Prabhupada को बहुत अच्छा लगता था जब लोग आके एकदम देखते थे, लोग देखो ये देवता लोग उतर के आए हैं सब लोग. और ये लोग भी गुरुदास प्रभु और ये सब लोग जो उस समय दे डांस, बड़े अट्टे कट्टे थे, लंबे 6-6 फीट के सब हाइट के थे, एकदम चेहरा चमकता था. पीपल वुड जस्ट सी देम, अरे ये लोग, और इंडियन सिंपल लोग थे. Prabhupada would tell, they know संस्कृत ऑल्सो. प्रभु लेक्चर बोलते थे, दे नो संस्कृत ऑल्सो. तो सब लोग, अरे रियली, अब तो स्वर्ग से उतर के आए हैं, संस्कृत आता है मतलब स्वर्ग से आए ये लोग. सो देन he told one of his disciple, Jadurani Mataji, he told, you sing Govindam Adi Purusham. So she started telling, Chintamani prakara sadma sukalpa vriksha lakshavute susurabir vipalayantam lakshmi satasa samrama samyamano Govindam Adi Purusham tam bhajami. एक वर्ष गाए, बोले वो दैट्स इट. तो ये सब लोग पूरे एकदम बाप रे बाप संस्कृत में श्लोक बोल रहे हैं. तो वो जब माता जी को बोले, तो बाद में जब क्लास हो गया तो माता जी बोली, प्रभुपाद यू टोल्ड मी टू सिंग, आई न्यू ओनली वन वर्स. प्रभुपाद आई न्यू दैट, इसलिए मेरे को एक ही श्लोक आता था. बोले मेरे को पता था एक ही श्लोक आता, इसलिए उतना ही बुलवाया. प्रभुपाद so expert in preaching na, he knew what people wanted. So this is one of the way of preaching. You should know what your audience want and that you should give. So the point is that I am jumbling up the whole thing, but I am coming to a conclusion. The point what I am making, that pleasure, first of all, you experience in the association of devotees and you relish it. You relish this bhakti. And then when you experience and when you go in front of audience, so see what is वो प्लेजर का खजाना है. अभी हमारे पास तो खजाना है, उस खजाने में से क्या चीज आप उस सामने व्यक्ति को दोगे जिससे उसका कृष्ण भक्ति बढ़ जाएगा. ना फॉर सम पीपल इट में बी कीर्तन, फॉर सम पीपल इट में प्रसाद, सम पीपल इट में फिलोसॉफी, सम पीपल जस्ट सम लव एंड केयर, जस्ट सम इमोशनल टच, इमोशनल ये, और वो आपके फिर जो है दीवाने बन जाएंगे. Prabhupada was exactly like that. He knew what each and everyone, and the way he implanted Krishna consciousness in people's heart, my God, लोगों ने जीवन दे दिया अपना, लोगों ने जीवन दे दिया प्रभुपाद जी को अपना. और ऐसा नहीं कि ये जब तक प्रभुपाद जी थे, सोचो प्रभुपाद जी 1977 11 साल खाली प्रभुपाद जी रहे और आज तक लोग सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं प्रभुपाद डिसाइपल्स आज तक. कैन यू जस्ट इमेजिन टिल टुडे so sincerely they are serving the whole ISKCON movement. So the point is that unless you first relish Krishna consciousness, you cannot give it to others. It is not possible. So that's why Prabhus, first whatever time you are getting in voice life, please practice every limbs of bhakti very nicely. Like Prabhuji was doing aarti, some of you are singing, dancing, but please involve your heart in it. Don't just do it superficially. Don't just do it that for the sake of ठीक है अभी क्या है, अच्छा चलो बढ़िया प्रसाद की व्यवस्था, अच्छा रहने को अच्छा मिलता है, बाहर क्या करेंगे सब शराब पीते रहते हैं, बेकार गाली वाली बकते रहते हैं, ये अच्छे लोग हैं. आप ऐसे कोई अल्टरनेट मोटिव से करोगे ना, और जब तक आप भक्ति का टेस्ट आपको नहीं चखेगा ना,
फिर आपके लिए मुश्किल जाएगा आगे जा करके, क्योंकि अभी आपको माया का बुलेट आया नहीं है, वो आएगा अभी, जस्ट वेट। पूरा बढ़िया पैकेज होके आएगा। हो सकता है आपका ही पैकेज में आ जाए, 20 लाख का पैकेज आ जाए, भेज दे आपको आसाम का कोई खाड़ी में जाकर, जा भैया वहाँ जॉब कर रहे हैं, और आपके काउंसलर बोलेंगे प्रभु जी अरे वहाँ कोई ड्यूटी एसोसिएशन नहीं है। क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, मैं 3 साल वॉइस में रुका हूँ, मेरा 7 बजे 16 माला हो जाता था, पता है आपको? प्रभुपाद जी कोई किताब नहीं बचा जो मैंने पढ़ के खत्म नहीं किया है। क्या बोल रहे प्रभु जी, मैं वहां जाके भक्तों का देखना, मैं एक सेंटर खोल दूंगा 2 साल में वहां पर। आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग? आई एम सो स्ट्रॉन्ग। काउंसलर प्रभु, बट आई एम फियरफुल दैट यू मे Maya is very strong, you may get carried away. No, don't worry Prabhuji, don't worry Prabhuji, 20 lakhs, I'll contribute to voice also. मैं हम यहाँ भी डोनेशन दूंगा, नया प्रीचिंग होगा, ये होगा। He tells like this and he goes after 4 months, फोन जा रहा है, हरे कृष्णा प्रभु जी आवाज नहीं आ रहा है, हरे कृष्णा हरि बोल, गया वो। It has happened to many devotees. See, this voice, it started in 2007. We started first preaching. Just imagine how many devotees might have passed out from this. 17 years have passed. If you count on an average, even 10, at least 10 boys connected to us per year, 170 devotees should be there or not? 170 people. But to our great surprise, they are not there. 170 is not there at least. इतने लोग थे, और फिर बाकी जो वेल विशर कनेक्ट हुए, नॉट एवरीबडी इज कनेक्टेड नाउ, बिकॉज वो सब खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं लोग उसको। so, आप भी जब जाओगे पास आउट होकर के, देन यू मे फॉरगेट इट, यू मे जस्ट फॉरगेट इट, एंड देन द प्रायोरिटीज ऑफ योर लाइफ विल जस्ट टेक ओवर ऑफ योर भक्ति, आपके भक्ति को वो पूरा कवर कर जाएगी। बट ओनली दोज पीपल विल सर्वाइव हु गिव भक्ति एज प्रायोरिटी। सो फर्स्ट गिव इट ए प्रायोरिटी। Like now when you are in a comfortable situation, give priority to your chanting, your rounds, reading Prabhupada books, associating with devotees, doing some services in voice, and that is you are building up, your muscles in bhakti. And then when difficult situation comes, you'll be able to tolerate it and you move forward. It's just matter of some time. 4-5 साल बिता लिए ना, तब वो आपके अंदर पूरा आपका शरीर में वो घुल जाएगा, जैसे ग्लूकॉन डी पानी में घुल जाता है ना पूरा, फिर आप थोड़ी सेपरेट कर सकते हो यार, नमक घुल जाता है ना, वैसे भक्ति हमारे अंदर घुल जाएगी। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे सब अनर्था से, नो, स्ट्रगल विल बी देयर, बट नाउ भक्ति हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू जस्ट कांट लिव विदाउट इट, यू जस्ट कांट, लाइक राइट नाउ फॉर अस, वी जस्ट कांट थिंक लाइफ विदाउट भक्ति, इट इज नॉट पॉसिबल। वी मे फॉल इनटू माया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट we just can't imagine without devotees, without Harinam, without this thing, everything seems very boring. What is that? You will not feel like to stay anywhere where there are no devotees are not there. So to that level, we have to practice bhakti. And when you do that, and when you move forward, you will see whomsoever you come in touch with, you become like that fire, like he was telling. And whomsoever comes in touch with you, then they will experience, अरे यार ये आदमी कोई दूसरे लेवल पे जी रहा है, this person is, he is experiencing that within. Prabhupada was like that, he was that fire. Anybody who came in contact with him, they could clearly understand this man, he is living on a different stratum only, he is not one amongst us, and he is experiencing what we are not experiencing. He is more happier than us. Anybody can tell. Anybody. No. Sometimes then some people they come. Like one time I was in temple, I was going. So एक आदमी मुझे रोक के बोलता है, एक मिनट, आप इतने खुश कैसे दिख रहे हो? बोला भाई ये भी गुनाह है क्या? खुश होना तो गुनाह थोड़ी है कोई। बोला नहीं, इस दुनिया में इतना खुश होना तो नहीं है भाई, पॉसिबल कुछ तो है। क्या है? बोला अरे हम तो खुश ऐसी है, क्या टेंशन हमारे जीवन में, कोई चिंता नहीं है। का चिंता मम जीवन यदि हरि विशंबर गीयते, जब भगवान है तो क्या चिंता है। तो बोले अरे 5 मिनट समय दे दीजिए मेरे को, मेरे साथ बैठिए प्लीज। फिर वो अपनी कहानी शुरू किया, ये जो बताया। मैं बोला अरे आप भी जो है आइए, भक्ति कीजिए, मंदिर आइए, सेवा कीजिए, ये खुशी आपको ही मिलेगी। बोला मिलेगी ना? बोला पक्का मिलेगी, फ्री में मिलेगी, पैसा थोड़ी देंगे हम इसका। तो फिर वो बड़ा ही प्रभावित हो गया, वो बड़ा। सो देन व्हेन यू एक्चुअली सी हैप्पी डिवोटीज,
you become inspired to practice bhakti. So it's our job, it's what we have to do. We have to find association with happy devotees to take inspiration, and we have to pass it down to those people who are not happy. So हम simultaneously हमारा एंटीना से वहाँ जुड़ा हुआ है कनेक्शन, वहाँ से हम वो हैप्पीनेस को ले रहे हैं और इधर पास ऑन कर रहे हैं. तो हम एक ट्रांसमीटर है, समझ रहे हो, हम ट्रांसमिट कर रहे हैं खाली. ऐसा नहीं है कि हम सुप्रीम ब्लिस में, नहीं, हम अगर हमारा पावर कट हुआ तो हम भी मोरस बैठ जाएंगे, समझो. तो हमको ट्रांसमिट करना, और अगर हम इसको पास ऑन नहीं करेंगे तो ओवर हो जाएगा हम लोग का, फिर वो पचेगा नहीं. जैसे आप अगर दोगे नहीं ना, जैसे गरम गरम चपाती आपके हाथ में आ गई, उसको देना, पास ऑन करना पड़ेगा, जल जाएगा नहीं तो. इसलिए समटाइम्स दोज पीपल हु आर जस्ट प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियस, मैं बस अब भजन करूंगा, मैं हो गया हूँ भजनानंदी बाबा जी. कई लोग अभी इस्कॉन में क्या होता है आपको बता रहा हूँ, 1-2 साल आएंगे मंदिर में और ये सीख लेंगे 16 माला जप करना, सब करना, फिर इनको याद आएगा वृंदावन, मैं जा रहा हूँ वृंदावन अभी. तो उसको अथॉरिटीज बोलते हैं अरे बाबा अभी समय नहीं हुआ है, थोड़ा वेट करो. जैसे अभी कई लोग हमारे साथ यात्रा में गए तो लोग बोलते हैं प्रभु जी और करना ही क्या मुंबई जा करके, यही गोवर्धन की तलहटी में बैठ करके बस एक चादर में ओढ़ लेता हूँ और बस खाना तो यहाँ प्रसाद तो चलते ही रहता है, दिन भर यहाँ बैठ के माला करते रहता हूँ, हो गया मैं 64 माला करके प्रभु जी इसी जन्म में भगवत धाम. तो मैं बोला बाबू अभी तुम 100 लोग के साथ आए हो तो तुमको बड़ा मजा आ रहा है, 2 दिन आप बैठोगे ना तो तुम यहीं चना मूंगफली बेचते मिलोगे. Yes, it will happen like this. Some people think that I'll just do my bhajan, just chanting Hare Krishna, me and my mala, my chanting, my sadhana, my book reading, my ये वो मी एंड माइंड जो बाहर था वो उठा के यहीं ले आया. अब मेरा एक खोपचा हो, मेरा एक कमरा, टच मी नॉट, मेरे एरिया में मत घुसो, ये मेरा बेंच है, मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई करूंगा, मैं यहीं माला जप करूंगा. समटाइम डिवोटीज आर सो अटैच्ड टू इवन देयर प्लेस ऑफ चैंटिंग. जिस जगह में वो बैठ के माला, अगर उस दिन कोई और बैठ गया तो जिस नजर से वो देखेंगे तो लगता है अभी जला के भस्म कर देंगे इसको. एंड इवन टू प्लेस ऑफ टेकिंग प्रसादम, लाइक हमारे आश्रम में एक डिवोटी है, तो इतना लंबा हॉल है हमारा प्रसादम हॉल, प्रोजी लोग देखा है. दैट वन डिवोटी, वो एक कॉर्नर में उसका जगह है, एंड ही विल कम ऑन हिज ओन टाइम. वो एक तो टाइम पे नहीं आएंगे, और मान लो कोई वहां बैठा हुआ है तो ये आदमी क्या करेंगे, ये जा करके उसके उधर बगल बैठ जाएंगे और गुनगुनाते रहेंगे. लोगों को तमीज नहीं है खाने की, लोगों को बैठने की जगह पता नहीं है, हाँ खाते रहेंगे और बोलते रहेंगे, कुछ डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, ये तो लॉ है, वहीं बैठ के बोलते रहेंगे. तो एक बार ऐसी एक जन बैठ गया था, उसको आके चिल्लाने लगे, जो जूनियर है उसको बोले यहाँ क्यों बैठे तुम, और कोई जगह नहीं है क्या. तो फिर मैं खड़ा था, मैं बोला अरे गजब है, ये क्या कोई लिखा है, आपने ये पीस ऑफ लैंड खरीदा है क्या, इतना कहाँ है पेपर, रजिस्ट्री दिखाओ इसका. So point is that even after coming to bhakti, we become attached to small petty things. हमारा अपना अपना चीजें. But that is not the mood of a preacher. We are receiving that mercy from Krishna Prabhupada. At the same time, we have to give also. इसलिए जब प्रचार की सेवा आए, then we should not just step back and just think that अरे मेरा पढ़ाई, no, we are not telling that आप पढ़ाई मत कीजिए, एग्जाम मत, ये सब नहीं बता रहे. But point is that we have to extend little bit. थोड़ा तो आप सोचिए, जस्ट एक बात सोचिए, आप यहाँ बैठे हो, किसने तो मेहनत किया ना इसके पीछे, कोई तो आया होगा ना आपके. भूल गए वो दिन जब आप हॉस्टल में आते थे, प्रभु चलो एमएमसी, हाँ प्रभु चलिए. मुझे तो पता है, हम तो सेकेंड ईयर में थे, व्हेन वी आर सेकेंड ईयर, एट दैट टाइम देयर वाज नो सीनियर, वो हम वी आर सेकेंड बैच ओनली. सो वी वर द सेकेंड बैच ऑफ दिस वॉइस, रेमुना वॉइस, ये जो वॉइस था, हम सेकेंड बैच थे. So there were no one to preach. तो we were the first batch who were properly preached and came to, जो हम सेटल हुए थे वॉइस में. नाउ ठंड के समय में सुबह 6 बजे हमारे जो सीनियर थे आते थे, बोलते प्रभु अभी हॉस्टल जाना है. बोला क्यों, वो बच्चों को लेके आना है एमएमसी के लिए. अब उस समय हमारा उतना था भी नहीं कि इतना दया और भक्ति किसको पता है, तो कुछ बोल भी सकते, सीनियर बोल रहे हैं. अब ऐसी रैगिंग की आदत थी हम लोग को उस समय. मतलब कम से कम ये कुछ उल्टा पटा बोला, चलो अब ये बोल रहे हैं, बट पूरा हार्ट में से लग रहा है यार, सुबह सुबह वो बेचारे लोग वहाँ पर सोए पड़े होंगे, कंबल ओढ़ के सोए होंगे, और हम जाके उनको नॉक नॉक करते थे, अरे चलो यहाँ पर. तो कई बार लोग तो जो है ना, हम लाते थे ना,
वो जस्ट उठा ही होगा, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज जाना है, ब्रश के लिए निकल रहा होगा और वो हमारा चेहरा देखेगा, वापस घुस के अंदर में ओढ़ के तो जाएगा लॉक कर करके। अब मैं तो देख लिया उठ गया है, वहां जाके हम लोग खटखट 15 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो ना एक लड़का तो इतना हो गया, उसकी माँ से कॉल कराया वो, माँ बोले मैं आपके चरण पढ़ती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। एक मदर मुझे लिटरली मुझे कॉल की थी, बोली थी प्लीज को छोड़ दो, ये बेचारा भोला भाला बच्चा है। उनको लग रहा था कि हम ऐसा रैगिंग कर रहे हैं, सीनियर आ रहे ना, फर्स्ट ईयर थे ना, सो बट स्टिल नाउ दोज पीपल व्हेन दे बिकेम डिवोटी, स्टिल नाउ दे आर वेरी थैंकफुल टू अस, प्रभु जी बचा लिया आपने। सो जस्ट इमेजिन, अगर कोई हमको अपने स्लम्बर से उठा के नहीं लाता, हम ये थोड़ी एक्सपीरियंस कर रहे होते आज। सो सेम वे जीव दया, सेम वे हमको भी लोगों को देना है ये चीजें। Yes, we have to go one step extra to give people this valuable Krishna consciousness. And believe me, when you do this, this is the activity which pleases most. My God, it's 8:43. I just lost only in time. Okay. Well, I'm just concluding in 5 minutes. When you give this valuable gift to people, the whole parampara, in fact, the whole world is happy with you. You are doing the greatest activity of this world, greatest humanitarian work. Believe me this point. Preaching. You preach Krishna consciousness. Why? Why it is so important? Because you are doing Krishna's job. आप सोचिए, and I don't have time, otherwise I would have tell you, what Krishna feels when one person goes back to Godhead. I would have told you about from Gop Kumar Katha, but I'll not speak now because then I'll go to other zone only. So in the sense कथा लंबी हो जाएगी। तो point is that Krishna becomes very very happy if one soul takes to this process to come to him, because Krishna loves each and every individual soul so much you just can't imagine. I spoke about this in Vrindavan, this katha 4 days, how Krishna feels when one person goes back to Godhead, and you are the person who are helping that conditioned soul to go closer to Krishna. How much Krishna will please you, just imagine how much he will please with you. That's why if you want to really rise very fastly in your bhakti and grow very very swiftly, the best seva is preaching. Preach Krishna consciousness. Prabhupada wanted this. And even in the course of preaching, there may be some mistakes we may commit or something may happen. Don't worry, Prabhupada will save us. This is in the 11th canto 1 purport. Prabhupada disciples, they wrote, Chaitanya Mahaprabhu, he will, even in the course, that's why in ISKCON you may see lot of things happening. You see a lot of videos going on in YouTube. ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, यहाँ के टेम्पल पर्सन ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया. It will happen. क्यों होगा? आप समझिए इस बात को. हम लोग इस दुनिया से व्यक्ति को उठा करके किसी पोस्ट में बैठा रहे हैं. अभी प्रीचिंग मूवमेंट है ना, प्रीचिंग मूवमेंट में कभी कभी आपको जो है एक गधे को बाप बनाना पड़ता है. ये लिटरली अगर बोलूंगा तो अपने भाषा में, तो आप देखो कभी कभी आप में से किसी को, मैं ये नहीं बोला आप सब गधे हैं, ये मत समझ सकती, ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ हम गधे. देखो हम जैसे गधों को भी कभी कभी जो है प्रीचिंग इंचार्ज बना के बैठा दिए. हम व्हेन आई वाज इन 3rd ईयर, दे मेड अस प्रीचिंग इंचार्ज. आई टोल्ड व्हाट इंचार्ज, भी करना क्या है? नहीं, यू आर जस्ट प्रीचिंग इंचार्ज, जस्ट गो एंड प्रीच. बोला अरे कुछ पता नहीं है. फर्स्ट टाइम व्हेन दे टोल्ड मी टू गिव डिवाइस क्लास, आई वेंट, सो आई प्रिपेयर्ड. 1.5 घंटा का लेक्चर प्रिपेयर किया था. मैं इतना नर्वस हो गया, 40 मिनट में खत्म कर दिया. बोला प्रसाद, नाउ नेक्स्ट विल टेक प्रसाद. और वो बेटा प्रभु जी आया ही नहीं अभी तक. मैं फटाफट बोल दिया सब कुछ. मैंने एनी क्वेश्चन, सब मेरे को दिख रही, बोला क्या, इसको क्वेश्चन क्या पूछे हम लोग. मैं ओके, मैं बोला एक चीज तो अच्छा लगे, कम से कम प्रसाद हलवा. तो मैं हमारे जो ऑर्गेनाइजर चेहरा देख रहा है, प्रसाद कहाँ है? प्रभु जी अभी आधा घंटा लगेगा, आप और खींचो. मैं बोला और मैं क्या बोलूं, मैं सब बोल दिया, जो मैं पढ़ के आया था बोल दिया. देन दैट वाज द कंडीशन दैट टाइम, नॉट नोइंग एनीथिंग, बट स्टिल हमको लगा दिए तो लगे रहे. अब करते करते सीख लिए भाई. So that's why preaching is like that. Even though we don't have qualification, still just because we want to preach, and it is Prabhupada's order, Chaitanya order. What Mahaprabhu told? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु होई तारा ही देश. आमार आज्ञा, it is my order, you become guru.
Not that we want to become guru or very high-fi thing. It's because of Chaitanya Mahaprabhu's order. We are becoming guru. Literally, we have to become guru. Now you see in Mumbai when we go to congregation house, na, like I went to one house, एक प्रोग्राम में घर गया. So these people, this family, सबसे पहले वो लोग भालो पर अभी अभी मत घुसेगा, अभी रुके. एक थाली लाए, उसमें पानी था, है उसमें लेके, प्रभु जी आप इस थाली पे पाँव रखिए. बोला क्यों? नहीं आपका चरण धोएंगे. मला बहुत गंदा चरण है मेरा. मत तो ही आप. तो वो फिर मैं बोला अरे ये सब हमारा नहीं चलता, ये सब गुरु बड़े बड़े लोग होता है, हम लोग तो एक साधारण ब्रह्मचारी है. नहीं प्रभु जी आप घर आ गए, पता नहीं क्या हो गया, ये तो ऐसे हो गए उन लोग पूरा एकदम. फिर मैं बोला मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगा, ये चरण हटाओ इसको. तो ये हम हटा दिए, मैं और तो हम लोग थे. फिर वो एक बोले अच्छा ठीक है रुको आरती का थाली लेके आए. हम लोग वहाँ खड़े आरती उतारे, आरती उतारू रे. फिर वो चावल वाल फेंक रहे हैं, पूरा ये कर रहे हैं. तो ऐसा फील होता है, गुरु सा फील होता है एकदम. हम तो गुरु बन गए लिटरली. बड़े बड़े आप घर में जाओगे ना, वहां पर जाएंगे, आपको माला पहनाएंगे, आपके लिए स्पेशल सोफा होगा, वहां पर कोई और नहीं बैठेगा, वो सब नीचे बैठेंगे और आपको एकदम सम्मान. प्रभु जी क्या लेंगे, इतना रिस्पेक्ट. आदमी बोले यार मस्त है. 5 लाख का जॉब भी करोगे तो इतना सम्मान नहीं देगा कोई. सच है कि नहीं है? और यहाँ पर इतना सम्मान इतना रहे. और फिर गिफ्ट भी आप यकीन मानोगे, आप क्लास दिए तो वो ना एक तो लिफाफा भी आएगा और हमको बोलता है नहीं चाहिए. हम लोग बोलते देखिए, हम कई बार हम बोलते हैं ऐसा, जस्ट बोलने की बात है. हम लोग ऐसे हैं, दूसरे घर जाते हैं, बढ़िया भोजन खाते हैं और पैसा लेके आते हैं. आप सोचो कैसा होगा. आप किसी घर जा रहे हो, आप खाओगे तो कुछ देना पड़ेगा ना बदले में, या रेस्टोरेंट जाओगे तो देना पड़ेगा ना पैसा. तो एक लग रहा है एक स्पीसी ऐसी होगी साधु लोग जो किसी घर जाते हैं, प्रसाद बढ़िया से बढ़िया खा करके और पैसा लेके आते, खाने का नाम का पैसा. लिटरली पीपल. और अभी तो ऐसा हो गया है कि लोग जो है ना हमारे ग्रुप में, वो लोग फोन करके पूछते हैं दूसरों को, प्रभु जी को क्या पसंद है. हाँ जैसे अभी प्रभु जी को क्या पसंद है बताओ, क्या गिफ्ट दें प्रभु जी को, घर आ रहे हैं. तो एक फैमिली तो आई, बोले प्रभु जी क्या दे आपको, आप लोगों को कमी है. तो बोले हम आपको एक जूता देंगे. मतलब आप चप्पल, आप लोग बहुत तकलीफ है आपको पाँव में. मतलब 5 जोड़ी है मेरे पास. लिटरली इनके पास भी 4 जोड़ी है, मेरे पास भी 4 जोड़ी है. कांग्रेगेशन प्रीचिंग मतलब यही है, आप करोगे ना ऐसे ही साथ. मेरा पॉइंट ये नहीं है हम इसके लिए जूता के लिए प्रीचिंग थोड़ी कर रहे हैं. लेकिन पॉइंट ये नहीं तो जूता खाएंगे फिर प्रॉपर से. पॉइंट इज दैट व्हेन यू प्रीच, कृष्णा विल सेंड एबंडेंटली. इतना भेजेंगे ना आपको, इतना देंगे ना, आपको लगे अरे यार क्या है, सम्मान भी मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगी, सब कुछ मिलेगा. बट ऑफ कोर्स वी शुड नॉट बी अटैच्ड टू दैट. वी आर नॉट प्रीचिंग फॉर दैट बिकॉज पीपल फीलिंग वेरी ग्रेटफुल. आप लोग जिंदगी में, लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा, रियली आई हैव नो सम फैमिलीज मुंबई में, आज वो लोग ऐसा बोलते हैं प्रभु जी आप बोल दीजिए बस. एक जन तो मैं एक घर गया तो बोले प्रभु जी हमारे, वो माता जी बोली हमारे प्रभु जी तो आप बोल दोगे ना अभी जम मारना, यहाँ से जम मार देंगे. बोला अरे मैं कभी नहीं बोलूंगा ऐसा, तो चिंता मत करो. ऐसे फॉलो करते लोग साधुस को, इतना फेथ है उनको, इतने जेन्युइन लोग हैं मैंने देखा है. और आप इंडिया में कहीं भी चल जाइए ऐसे लोग बैठे हैं जेन्युइनली. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नॉट चीट देम, वी शुड गिव देम जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट जॉब वी आर डूइंग फॉर दिस वर्ल्ड. सो प्रभुज वी हैव लॉट. आप लोग एक जन जो यहाँ बैठे हो ना, अभी आप इतने यंग हो, समझ लीजिए आपके जीवन में अभी 40-50 साल है, जो आप इस देश के लिए, इस समाज के लिए, पूरी दुनिया के लिए कितना काम कर सकते हो आप सोचिए. जस्ट इमेजिन योर लाइफ, जस्ट इमेजिन योर लाइफ. आप कितने लोगों का जिंदगी बदलोगे, कितने लोगों का. ऐसा बोला गया एक ब्राह्मण 1000 लोग का जिंदगी बदल सकता है. 1 ब्राह्मण कैन हैंडल 1000 पीपल. That's why our target in Kharghar is to make 1000 devotees. In coming 5-10 years, we are making planning completely. Now we have almost 200 people in our congregation and all. But in coming 5-10 years, we are thinking 1000 congregation will make. ऐसा सोच रहे हम लोग, प्लान कर रहे हैं. अब वो तो भगवान की इच्छा जो हो. बट आप सोचिए आप 1000 लोगों के जिंदगी को आप प्योर बना रहे हो, उनको 4 नियम पालन करा रहे हो. जस्ट इमेजिन. एंड इट विल ब्रिंग सच अ बिग इम्पैक्ट इन द सोसाइटी. कितना बड़ा सोसाइटी में इम्पैक्ट आएगा.
सो वॉट एवर चैलेंजेस यू आर हैविंग नाउ, ये थोड़ा सा आपका लस्ट, एंगर, ग्रीड, ये सब जो समस्या है, इसको सह लीजिए, आगे बहुत कुछ आने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका आगे आने वाला है। और आपके जो सीनियर्स यहाँ हैं उनसे पूछिए, आगे बहुत, अभी का तो चैलेंजिंग है, उसको डरिए मत उससे। अरे मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अरे मेरे रिलेटिव्स क्या कहेंगे। रिलेटिव, पहली बात तो रिलेटिव्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देने का। ये लोग हैं जो, ये रिकॉर्ड पे भी जा रहा है, बट एनी हाउ, ये लोग हैं जो न तो आपका भला चाहते हैं, जो दिखाते हैं कि हम आपका बहुत हितैषी हैं, बट आपके जीवन में कुछ भला नहीं करेंगे आपका। एक तो आपके माँ बाप को भरेंगे कहानी, लोग देख तेरा बेटा इस कौन में गया गया वो, जबकि कुछ हुआ नहीं है, बट ये लोगों का कान भरेंगे। और इसलिए मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको रियली अपनी भक्ति को बचाना है तो इनसे बस दूर रहिए। बस आइए, हाँ कैसे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, जाइए अब। So yeah, we should not pay much attention to their thing. Of course, I'm not telling that you blaspheme them or you offend them. No, but don't pay much attention to these things, you know. And even your parents, be assured that I am there for you. Don't worry, I am there for you. You know, and you have to prove. Like I can tell about myself only. So in 2017, you know, when I just shifted to Kharghar, so my mother was diagnosed with some treatment, some in this thing. So at that time, doctor he told that your survival chance for your mother is 35% only. It's a cancer only. So he told, I clearly remember that day when my brother was sitting there and I was sitting in that chamber in Kokilaben Hospital in Mumbai, Andheri. So he told that she will survive for 5 years. The chance is 35%. And my brother told, my life is finished now. Everything is finished now. And I clearly remember myself, my brother and my father. We three of us, we came to Juhu temple. और हम लोग जुहू में भगवान राधा राजभरी के सामने बैठे हैं ऐसे बस। और मेरे पिताजी वहाँ पर बोल रहे हैं, अरे अभी क्या होगा, ये ज़िंदगी क्या है। सडनली ये डायग्नोज हुआ, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा। हम लोग इतना धन पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, माई भाई वो तो पूरा। और मेरी मदर बोली है, मुझे अभी मरना नहीं है, मुझे अभी ये शादी नहीं हुई तुम लोग का, अभी शादी करना है तुम लोग का। ये मतलब चुप रहा अभी तू, पहले कुछ ट्रीटमेंट तो करे। सो शी वॉज लाइक, लेडीज है, इमोशनल हो गई। ये तीनों ऐसे बैठे हैं और मैं बोला, अरे आप चिंता मत करो। मैं एकदम आराम से, मैं डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, ये सब ट्रीटमेंट अभी नेक्स्ट क्या करना है, गेस्ट हाउस बुकिंग कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। एंड देन आई टोल्ड हर, सी वॉट एवर टाइम यू हैव, यू नो, तुम आज थोड़ी मर रहे हो, अभी थोड़ी तुमको ऐसा आ गया कि अभी कोई गोली मार दिया और नहीं मर रहे हो। टाइम है ना, अभी तो तुम सही सलामत हो ना। नाउ यू आर वेरी फाइन, अभी जो अंदर बीमारी है उसको ट्रीटमेंट करना है, लेट अस सी। सो देन आई पैसिफाइड देम, देन आई टोल्ड ओके। सो माई फादर ही टुक माई हैंड, ही टोल्ड, बेटा अगर तेरी माँ को बचाना है, इमोशनल सीन जो आता है ना फिल्म में, तुमको आना पड़ेगा। एकदम पूरा फिल्मी सीन हो गया, मेरे को सीन याद है, हम ऑटो में बैठे थे हॉस्पिटल सीट। बेटा अब तेरे को बोला, ले तेरी मार दिया यहीं पर चौका भी इन्होंने। मैं बोला मैं आ रहा हूँ, चिंता मत करो। सो माई ब्रदर एट दैट टाइम वॉज डूइंग MD, वो पढ़ाई करते, PG कर रहे थे। और सिस्टर मेरी IIM कलकत्ता में MBA कर रही थी। दोनों बोले कि हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं, क्या फायदा, जब माई नहीं बचेगी तो क्या फायदा ऐसे MBA का, क्या फायदा ऐसे डॉक्टरी का, छोड़ो। अरे मैं बोला कुछ मत छोड़ो, मैं खाली बैठा हूँ। मैं आता हूँ खाली बैठा इन सेंस, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरे को अभी क्या टेंशन है। मैं अपने गुरु महाराज के पास गया, मैंने बोला महाराज ऐसा ऐसा हो गया। महाराज बोले जाओ और उनका जो ट्रीटमेंट है सब कर करके फिर वापस आ जाना करके। देन आई केम एंड आई स्टेड विथ माई मदर फॉर 8 months कंटिन्यूअसली, 24 hours a day, 8 month पूरा। उनका आज भी उनका ट्रीटमेंट का कुछ भी होता है ना, बाय द वे शी इज अलाइव, वो जिंदा है अभी। ये बात 7 साल हो गई है। एंड शी इज फ्री फ्रॉम इट नाउ, बीमारी पूरा खत्म है। सो द पॉइंट इज दैट कि उस समय जब मैं आया तो मैंने ये इसको एक टास्क दे लिया कि अब मेरे को अभी यही करना है। सो आई वाज जस्ट चैंटिंग माय 16 राउंड्स, फॉलोइंग एडुकेट प्रिंसिपल्स। देन व्हाट आई डिड, आई जस्ट एलिवेटेड हर कॉन्शियसनेस बाय रीडिंग भागवतम, बाय डूइंग कीर्तन इन द रूम। तो हमने एक हीलिंग वाले को बुलाया था, जो लोग एनर्जी हील करते हैं ना, आजकल बहुत सारे ऐसे रहते हैं हीलिंग वाले। सो दैट पर्सन केम टू आवर रूम एंड एज सून एज ही एंटर्ड द रूम ही टोल्ड, व्हाट डू यू डू इन दिस रूम, आप इस रूम में करते क्या हो। बोला अरे हम तो भागवतम पढ़ते हैं, कीर्तन करते हैं। बोलते हैं इस रूम की एनर्जी इतनी हाई लेवल पे चल रही है, जैसे आप देखिए इस परिवेश का जो माहौल है,
इतना लेवल पे चल रहा है एनर्जी यहाँ पर, कोई भी यहाँ घुसेगा बाहर से, आपको लगता होगा ना जब अपने कॉलेज के बर्निंग उससे आते होगे तो ये आपको AC 2 टायर का कोच लगता होगा। लगता है ना, बच गया बच गया बच गया बच गया, मैं घुस गया। मेरे को ऐसा लगता जब भी मैं कॉलेज आता था शाम को 5 बजे, as soon as I entered this and I offered obeisance to Prabhupada, बच गया, माया से बच गया रे, बच गया। इट इज लाइक सच अ शेल्टर, सच अ शेल्टर। सेम वे वी फील फॉर टेम्पल ऑल्सो। जब भी हम लोग जाएंगे ना टेम्पल जाते हैं ना, चलता है अरे अरे बच गया, जैसे भी है मंदिर अपना घर है भाई। सो पॉइंट इज दैट, सो देन ही टोल्ड दिस एनर्जी सो हाई, नो डिजीज कैन स्टे हियर, कोई बीमारियां रह नहीं सकती है। एंड इनफैक्ट दैट पर्सन, वो जो हीलिंग वाला था, वो मुझसे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, बोला सर आप भी थोड़ा मेरे को, मैं हीलिंग कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। आई एम नॉट जोकिंग, आई एम जस्ट टेलिंग लिटरली दिस ट्रूथ। ही टोल्ड मी, मुझे तो गीता बताओ, मैं लोगों का बीमारी ठीक करके खुद बीमार हो चुका हूं। बेचारा ऐसा उसका हालत हो गया था। एंड देन यू नो आई टोल्ड, अरे आप गीता पढ़िए, ये सब मटेरियल चीजों में ज्यादा मत घुसिए, गीता पढ़िए पढ़िए। एंड देन आफ्टर 8 months व्हेन वी वेंट फॉर चेकअप, देन द डॉक्टर टोल्ड मी, टोल्ड अरे दिस इज मिरेकल, हाउ कुड यू डू दिस, ये कैसे ऐसे हो गया ये चीजें। सो आई एम टेलिंग यू, दैट टाइम आई रियलाइज द पावर ऑफ भक्ति। यू नो इट इज नॉट जस्ट थ्योरेटिकल, एंड इवन अ पर्सन लाइक मी, यू नो हु इज नॉट सो एडवांस्ड एंड सो दिस, बट we could do it. So that's why if very big challenge come in your life, I'm telling you, you become so mature. So your parents will not realize now, but time will come when they will realize your importance in the family. They'll realize this thing. Because whatever decision you will take based on शास्त्रास। आप ये मत सोचिए कि आप धीरे धीरे शास्त्र को समझते समझते आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ते जा रही है, आपका इंटेलेक्चुअल बढ़ते जा रहा है, और आप देखना आपका सोचने का तरीका और अदर का में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। थोड़े दिनों में आप देखना ये हो जाएगा। सो प्लीज प्रभुस, टेक दिस सीरियसली। यू जस्ट इमेजिन योर इंपॉर्टेंस, व्हाई कृष्णा हैज चोजन यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। Thousands of students are there because he wants you to contribute significantly to this society, to this community. That's why he has chosen us, and let us be a part of it. Let us just be an instrument in the hands of our Guru Parampara and Krishna. Why not? Anyhow this life will go. आज कितने लोग हैं बड़ा बड़ा जॉब करे, पैसा कमा रहे, तो क्या बड़ा बात हो गया, क्या वो चीज हो गया, क्या उन्होंने ज्यादा कुछ काम कर लिया, कुछ ऐसा नहीं है। सेम सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई आदमी एक थाली में खा रहा होगा, उसमें कोई सोने की थाली में खा रहा होगा, बस डिफरेंस वही है, खा तो वही रोटी सब्जी रहे ना, और हम भी वही खा रहे भाई, और अच्छा खा रहे। तो पॉइंट इज दैट लेट अस कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस सोसाइटी, सो दैट एट द एंड ऑफ योर लाइफ, when you take the last breath of your life, so this is my goal of life, कि when I take the last breath of my life, I should not have regret that I didn't live my life properly. तो हम अगर प्रचार करेंगे, सेवा करेंगे ना, तो जब आपका अंतिम समय आएगा ना, आपको ऐसा फील होगा अंदर से कि मैंने मेरा 100% दे दिया इस दुनिया को, और अब भगवान की इच्छा, जो भगवान करेंगे। दैट विल बी द ग्लोरियस लाइफ। अदरवाइज वो मरना क्या मरना है, आप अपने घर के खटिया में पड़े होगे और घर वाले बोल रहे होंगे हे भगवान इसको उठा ले, बोलेंगे नहीं सामने? सामने तो नहीं बोलेंगे, अंदर अंदर बोलेंगे। आप देखते हो ना घरों में क्या हाल हो रहा है, वो बेड में पड़े हुए हैं, उनको बेड पे ही जो है स्टूल यूरिन करना पड़ता है, वो चिल्लाना पड़ता है, बहू, और बहू आती 2-4 गाली बकती है। फिल्मों में आप देखा होगा, सीरियल में, पता नहीं है माँ जी मेरे सिर पे पड़ गई आकर के, ये क्या है, अरे क्या हाल है। लोगों को जाके देखो, घरों में आप जाके देखो, उनका क्या हाल है बेचारे। आई शुड नॉट से दिस, बट 3rd कैंटो में कपिल मुनि बोलते हैं, एक कुत्ते के समान जिंदगी हो जाती है लोगों की। जो लोग भक्ति नहीं करते हैं, और जो लोग आत्म तत्व को नहीं समझते हैं, तो शरीर तो अब यूजलेस हो गया है, और बच्चे ये देख रहे कब ये बूढ़ा जाएगा और प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। सोचो आप कितना दर्द होगा आपको उस समय। जस्ट इमेजिन करो कि जिस प्रॉपर्टी को आप पूरा एक एक पैसा जोड़ जोड़ के कमा के इतना घर और बनाओगे, उसको ही आपके बच्चे पोते, ये लोग सब जो है पूरा जो है तोड़ तोड़ के वो करेंगे एकदम। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते थे ऊपर में छत पे कॉर्क बॉल से, तो धम 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 मारते थे। नीचे मेरी जो दादी थी बोलती थी अरे पूरा घर तोड़ डाले तुम लोग, पूरा उसका हार्ट में लगता था, अरे ढक ढक ढक, पूरा तोड़ दिया था हमने दीवार खेल खेल के। ऑफकोर्स जो भी हो, इन द सेंस। एंड देन प्रॉपर्टी पे झगड़ा, ये झगड़ा, आए दिन टेंशन, आए दिन परेशानी। जाके घरों में देखो ना क्या हाल है अभी। इतने कोई सूत्र से, जैसे कई लोग, कुछ लोग बोले मेरे को, अरे अरे प्रभु जी गीता घर में नहीं लाते, उससे महाभारत होगा। मतलब अभी नहीं हो रहा क्या?
अभी का तुम बड़े रामायण वाले वो मन रखे हो क्या, सीताराम मन रखे हो? देखो घरों में जाकर के आप क्या हाल है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जिंदगी ऐसा ना हो, टेक इट सीरियसली। डजेंट मैटर यू बिकम ब्रह्मचारी, यू बिकम गृहस्था, दैट इज नॉट द थिंग। देयर नो, इवन वी आर एंडोर्सिंग नाउ, जस्ट अभी आने से पहले हम अपने एक यूथ का शादी तय करके आए हैं हमने। तो इट इज नॉट दैट कि हम इसके खिलाफ है कि तुम शादी, हम वैराग्य। देखो, जो लोग पहले वैराग्य जीवन को जीते हैं वही अच्छे गृहस्थ बन सकते हैं, समझ रहे हो? दोज आर गुड ब्रह्मचारीज दे बिकम गुड गृहस्था, ये भी देखा गया इस कौन में। बट जो लोग डायरेक्टली गृहस्थ में जम मार जाते हैं, हाँ बड़ा मजा आएगा, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो आप ऐसा सोच के घुसोगे ना तो सपनों की रानी नहीं बन जाएगी, वो बनेगी चुड़ैल फिर, और ऐसा खून चूसेगी आपका ना कि पूरे अधमरे हो जाओगे। सच बता रहा हूं। तो डोंट लैंड अप एनीवेयर विदाउट ट्रेनिंग। इवन यू वांट टू एंटर गृहस्थ आश्रम, टेक दिस वॉइस ट्रेनिंग, ये आपको बचा के रखेगा। नहीं तो जो लोग ऐसी गृहस्थ बने उनका तो जो बैंड बज रहा है अभी, अरे बाप रे बाप, बहुत कहानी अभी नहीं बताऊंगा आपको, कभी गृहस्थ क्लास लेता बताए। तो anyhow, I will stop here. So I don't know what I spoke, just spontaneously it went on to the flow. But thank you so much. It was very nice speaking to youth, and in that sense. So thank you. Any questions or anything you want to ask? I don't know what was the flow. Was it okay, that flow of the lecture? Whatever inspired from within me. Yes. See, our Pujari ji want to ask. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you for the amazing class. So, Prabhuji, you said कि in between like Maya can come as a packet of your, I mean as a package also, like 20 LPA लेकिन आसाम कहीं भेज दिया। तो लेकिन अभी तो आपको पता ही है जॉब मार्केट इतना बेकार है, तो ऑफर मिलने पर मतलब रिजेक्ट करना इट्स लाइक अ वेरी हाँ, yes. हार्ड डिसीजन। पेरेंट्स Correct. बोलेंगे पागल है क्या कि तुम हाँ. एक मिला है तुमको 100 लोग में से Correct. बट व्हाट शुड वी डू Prabhuji? Yeah. See, I understand, Prabhu. See, first thing is that whenever we get any job or any offer, we must consult with our superiors. Now, see, nowadays, so if a responsible counselor will be there now, so what he will do, he will make some boundary to protect you, to safeguard you. So see, maybe he may connect some online classes. Like there are some devotees who are in a remote place, but they are connected through online classes. So that safeguard, you should be ready to be under that safeguard. Suppose now that counselor is telling, okay, now it's a very good package है, आपके घर में रिक्वायरमेंट भी है, फाइनेंशियल चीज़ें दरकार है, बट देन यू हैव टू मेक श्योर कि हर 6 महीना में आप कोई कैंप में आ रहे हो, भाई आप मायापुर आ रहे हो या वृंदावन आ रहे हो, एक कनेक्टिविटी वो बहुत ज़रूरी है। मैं जो पॉइंट बोला था उसमें क्या बोला था कि समटाइम व्हेन पीपल पास आउट फ्रॉम वॉइस लाइफ, सो दे बिकम सो ऑब्लिवियस टू वॉइस कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे है, यू नॉट बिलीव, one devotee from my batch, when he passed out, he was great preacher in my time. He used to give very nice classes, and he used to, I don't want to remember the name and all in case but I think don't know him. He used to speak from Chaitanya Charitamrita, and in voice में बैठ करके वो श्लोक बोलते थे, जो भी हम बोलेंगे श्लोक महाप्रभु का एकदम। मैं बोला यार क्या आदमी है ये, गजब है, क्या भक्ति पकड़ लिया ये, बहुत अच्छा हो गया, तो हम लोग से कितने ऊपर चल रहे हैं प्रभु जी, हम ऐसा। एंड यू नॉट बिलीव, जैसी जॉब भी कहाँ लगा था उनका, ये आपका बैंगलोर में आईटी कंपनी में जॉब लगा, किसी का फोन ही नहीं उठा रहे हो। एंड देन मैं चला गया पुणे, आई वॉज इन पुणे, मैं वीडियो बागुली वॉइस में था, वहीं से हृदय माधव को उठा के लाए। तो देन आई थॉट, अरे यार ऐसे कैसे इसका भक्ति जा सकता है। मैं भी अपने जोश में आ गया, मैं बोला मैं तो उसको उठा के लाऊंगा बैंगलोर से, चकुर पे। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं और मुझे पहली सैलरी आई थी, मेरा भी पैसा थोड़ा हाथ में था, घर में बताया नहीं, मैं बिना जाने कि वो कहाँ पर है मैं बैंगलोर चला गया। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ टिकट बुक किया, बैंगलोर चला गया, खाली मेरे को कंपनी का नाम याद था, तो मैं वो ढूंढते ढांढते कंपनी चला गया वहाँ पर। मैं बोला ये व्यक्ति आपके यहाँ काम करता है क्या, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोला हाँ ऐसा तो है, ये तो काम करता है। तो बोला बुलाइए उनको, बोले उनके ओल्ड फ्रेंड आए, तो आए वो मेरे को देख के, प्रभु जी आप कैसे यहाँ पर। बोला प्रभु जी क्या कर रहे हो, चलो कहाँ, चलो वॉइस चलो, भूल गए आप सब कुछ, कहाँ गए वो सीसी के श्लोका, हाँ कहाँ गए आपके वो भागवतम के ये। बोला प्रभु जी आप सब वो
अतीत हो गया है, अब सब बीत गया, वो भूल जाओ सब, वो सब उस समय था, वो सब वॉइस में था, रहते थे तो कर लिया, अब क्या, अभी ज़िंदगी बदल गई है। मैं बोला अरे मैं इतना दूर से आया हूँ, थोड़ा घर तो ले चलो, नहा धो लूँ, कुछ कर लूँगा। बोला मेरे घर मत आओ, लिटरली बोला मेरे घर मत आओ। बोला क्यों भाई, इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं? तो बोले नहीं, आप देख नहीं पाओगे मेरे घर में। In the sense that he developed all the bad habits which he had previously. He told, don't come to my home. Then I stayed there for 6 hours. I told, प्रभु जी मैं फ्लाइट बुक कर रहा हूँ, मैं पैसा दूंगा, चिंता मत करो, 10,000 की फ्लाइट थी, चलो मैं आपको एक बार अरकला लेके चलता हूँ। रियली बोला एक बार आप आ जाओ मेरे साथ, आप वापस रिवाइव कर जाओगे। वो पूरा सोचता रहा, लास्ट में मना कर दिया। टिल नाउ आज तक वो कनेक्टिविटी, मतलब बाद में कनेक्ट हुए बट गया वो। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट था कि आप इतने फिर वो हो जाओ कि आपको कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा भक्तों से, समझो, फिर आप अपनी ज़िंदगी में चल जाते हो। देन ये सब क्या आप नाटक कर रहे हो यहाँ पर बैठ के फिर, या इतना मेहनत जो आपके लोग कर रहे हैं वो क्या मजाक है फिर? ये सब चीज़ें इतना आपके लिए सोचिए, एक्सपेंसेस हो या मेहनत हो, ये हो। समटाइम पीपल बिकम लाइक दिस, सो ऑब्लिवियस, जैसे मेरा कोई नाता ही नहीं है ना, जैसे कोई रिश्ता ही नहीं है मेरा तुम्हारा, भाई जाओ भूल गया मैं तुमको। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस वॉज माई पॉइंट। सो when you are going for any job or any places, you tell to, in fact what should be our conscious, प्रभु जी मैं दूर जा रहा हूँ वॉइस से, प्रभु जी मुझे बचा लेना प्लीज। आपको काउंसलर को बोलना चाहिए, काउंसलर नहीं बोलना चाहिए अरे बेटा तू अरे तू जा रहा है, माया पकड़ लेगी, और आप बोल रहे कुछ नहीं पकड़ी प्रभु जी, माया क्या है? माया तुम गर्लफ्रेंड ना रख सकता माया को अपने। बोले बेटा मत बना, खा जाएगी तेरे को। इन द सेंस इज दैट there should be healthy fear of Maya. That was my point. This is called healthy fear of Maya. You should have contact with many senior devotees. अभी आप 3-4 साल में बहुत लोग से संपर्क में आओगे, not only your counselor but even other devotees. और आप उनसे संपर्क करो, प्रभु जी ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं I tell you one thing, प्रभु please remember this. ISKCON is such a wonderful organization. I'm telling you, यहाँ लोग हेल्प करते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि सब मतलब ही है, ये ऐसा लग सकता है। आप कोई एक अनजान व्यक्ति को भी आप कुछ लिखो ना, एक मेल लिखो या अगले को, प्रभु जी मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, वो आपको हेल्प करेंगे। देखना रियली आपको, इफ यू वांट हेल्प, हेल्प विल कम टू यू, दैट इज फॉर श्योर। राधे श्याम प्रभु को आप देख लो ना, राधे श्याम प्रभु को आप दुनिया के किसी कोने बैठे और मेल लिखो उनको, प्रभु जी है, अगर आप वॉइस से पास आउट हो, देखो प्रभु जी का रिप्लाई आएगा आपको। यस आप यकीन ना, अभी मैं खारगर गया तो मैं थोड़ा पुणे से दूर हो गया था 4-5 साल, एंड देन आई रोट मेल टू प्रभु जी ऐसे करके, स्पेशली जब गुरु महाराज गैस हो गया, 2 घंटे के अंदर रिप्लाई आ गया। मैंने कुछ पूछा था प्रभु जी को, 2 घंटे के अंदर। अब पूछे प्रभु जी कौन है? राधेश्याम प्रभु। वो आज इतनी बड़ी हस्ती है इस्कॉन में, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट मैन इज इस्कॉन, आई कैन टेल, बिजिएस्ट मैन। अगर आप पूरा अभी पकड़ लोगे, जितना लेक्चर राधेश्याम ने दिया है, शायद ही कोई इतना स्पीकिंग किया होगा इस्कॉन में आज तक, शायद ही कोई। प्रभुपाद जी के बाद में भी प्रभु जी का नाम आ जाएगा। ही सच अ मैन। और क्या क्या प्रीचिंग उनका, कल मैं पोर्टफोलियो बोलूंगा, कल हमारे प्रोग्राम होगा ना, तो उनका वीडियो बना रहे हैं उनका इंट्रोडक्शन के लिए, 15 मिनट तो खाली इंट्रोडक्शन लगेगा उनका बताने में क्या क्या उन्होंने अचीवमेंट किया है, रियली। बट वो व्यक्ति मुझ जैसे एक तुच्छ व्यक्ति के लिए समय निकाल करके 2 घंटे में रिप्लाई आ रहा है, मुझे इतना कनेक्टिंग फील हुआ। मैं बोला देखो क्या व्यक्ति है। और प्रभु जी क्या लिखते हैं उसमें कि प्रभु आई एम ऑलवेज देयर फॉर योर सर्विस, ऑलवेज देयर फॉर यू। इतना मुझे फील हुआ, मतलब अरे यार देखो, मैं ऐसे आदमी के लिए ज़िंदगी नहीं दूंगा तो किसके लिए दूंगा मैं, समझ रहा। तो इस्कॉन में आप ये मत सोचिए कि सब लोग से आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं लोग, बट आपको अप्रोच करना पड़ेगा। यू हैव टू अप्रोच। सो ऑलवेज बी इन दैट सीकिंग मैनर, आई वॉन्ट हेल्प, आई वॉन्ट हेल्प, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव, आई वॉन्ट। देन यू सी इतने अच्छे अच्छे भक्त हैं ना प्रभु, क्या फैमिली है इस्कॉन का, मैं सच बता रहा हूं आपको, क्या फैमिली। आप देखोगे ना लोगों, इवन गृहस्थास, आप अगर मान लो आगे जाकर आपका मैरिज भी होता है, आपका होता है, इतने अच्छे अच्छे गृहस्थास है ना जो आपको ऐसा फील कराएंगे कि आपको लगेगा कि आप उनके फैमिली के सदस्य हो। इतने अच्छे लोग हैं। तो प्लीज टेक एडवांटेज, प्लीज। एनी आपका ही सर्कल इतना बड़ा बन जाएगा कि आप इतने सारे डिवोटीज है, वॉइस पास आउट, वॉइस अपने आप में एक बड़ा फैमिली है कि नहीं। अभी आप जाओगे पुणे और मायापुर, देखा नहीं कि आपने मायापुर में कितना बड़ा फैमिली है वॉइस। तो दोस्ती बनाओ और वो करो, आगे बढ़ो, ठीक है। थोड़ा मैंने ऐड किया, फाइन, ओके। सो थैंक यू सो मच। यू हैव टू आस्क, यस प्लीज टेल। मतलब बुक रीडिंग वगैरह, मतलब
कुछ भी करते टाइम हम लोग कैजुअलिटी आ जाता है कि ठीक है करना है कर लेंगे बाद में कर लेंगे। तो कैजुअलिटी से कैसे डील करना है? तो बोलते हैं ना, इफ यू बिकम कैजुअल यू बिकम कैजुअलिटी, होता है ना हॉस्पिटल में कैजुअलिटी वार्ड फिर हम लोग जो है एक्सीडेंट हो जाएगा। सी वन थिंग दैट इट इज़ नॉट दैट एवरीथिंग इन कृष्णा को यू कैन डू सीरियसली, यू कैन नॉट डू। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, बट अपना एक चॉइस होता है। एटलीस्ट एक एक्टिविटी ऐसी हो जो आप दिल लगा के करते हो, एक तो चीज़ हो कोई, चाहे डीटी वर्शिप हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे क्लास देना हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, एक चीज़ को सीरियसली कीजिए जहाँ जो आपका नरिशिंग फैक्टर हो। जब आपका माइंड फ्रस्ट्रेट हो, जब आपको आपके अनर्थास बहुत सता रहे हो, तब वो चीज़ आपको बचानी चाहिए, ये होना चाहिए। बट आई सी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि हर ही व्यक्ति, ऑफकोर्स ट्रेनिंग में सबका रहता है, बट नॉट नेसेसरी दैट एवरी ड्यूटी कैन रीड बुक्स फॉर 8 आवर्स 4 आवर्स 2 आवर्स। ये नहीं होता। वो जिसका ब्राह्मणिकल सत्वगुण रहेगा वही पढ़ पाएगा। बाकी लोग पढ़ेंगे आधा घंटा में, आधा घंटा क्या 5 मिनट की बस देरी है, वो आराम से हेड डाउन करके सोया होगा, सभी खोल के बैठा होगा। आप आइए, समटाइम्स मैं देखता हूँ कोई प्रभु जी है, अरे चलो प्रभुपाद दुख पड़ रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम, बहुत अच्छा अभी डिस्टर्ब मत करो, कुछ बात बोलना होगा मान लो डिस्टर्ब, 5 मिनट बाद आओ प्रभु जी फिर लगता है डोंट डिस्टर्ब हिम, सोए पड़े अभी उसके अंदर वो है ही नहीं वो चीज़। देखिए आर्टिफिशियली अपने आप को हर चीज़ में एक्सपर्ट बनाने का प्रयास मत कीजिए। डोंट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन एवरीथिंग, यू कैन नॉट बिकम, आई एम टेलिंग यू। समटाइम व्हाट हैपेंस, यू नो, सी वी हैव दिस हैबिट ऑफ कमिंग फर्स्ट इन क्लास, मैंने हैबिट इन नॉट, हम फर्स्ट कभी आए नहीं, बट वो रहता है ना एक फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ फर्स्ट आओ। हम भक्ति में आते हैं, इसमें भी फर्स्ट आओ फर्स्ट। तुमसे अच्छा कोई गाना नहीं चाहिए। आप जब गा रहे हो तो कितने लोग ताली मार रहे हैं, कितना नाच रहे कूद रहे हैं, कम से कम 5 प्रभु जी क्या गाया आपने बोलना चाहिए। या जो आप लेक्चर दे रहे हो तो देन वो यहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ जाता है, जो कि अच्छा है बट नेगेटिव सेंस में अच्छा नहीं है। वी शुड नो आवर लिमिट। और भैया मेरे से हिसाब नहीं होता, लेट अस बी ऑनेस्ट एंड जेन्युइन, नहीं तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। समटाइम्स आई हैव सीन डिवोटीज हु हैव रियली डोंट हैव नेक ऑफ दैट थिंग एंड दे अननेसेसरी टेक इट अप। लाइक फॉर एग्जाम्पल मृदंग, अभी आप यकीन वृंदावन में अभी हृदय माथुर बहुत अच्छा मृदंग बजाते हैं, एक्सपर्ट प्लेयर है वो। अब इनको जब बजाते हुए लोग देखते हैं तो अभी वृंदावन हम लोग गए थे, ये बजाए, बड़ा मजा आया, कीर्तन हुआ, 5 लोग मृदंग खरीद के लाए वहां से 6-6 हज़ार का, 5-5 हज़ार का। क्यों? मैं बोला प्रभु जी क्यों खरीदा? प्रभु जी मेरे को भी वो आनंद लेना है, वो जैसे बजा रहे नहीं, मजा आ रहा था प्रभु जी, क्या नाचे हम लोग। मतलब प्रभु जी वो उनका स्किल है, आपका स्किल कुछ और है, इसमें मत घुसिए। अभी वो घर में जाके घुसेंगे, थोड़ा डुम डुम करेंगे, 2-3 दिन में वो जोश उतरेगा उनका। जैसे इनको पूछो कितने लोग इनके पास आते हैं माँ बाप अपने बच्चों को लेके, प्रभु जी मृदंग सिखा दो। तो ही हैज़ मेड अ रूल कि आपको 8 राउंड कम से कम चैंट करना पड़ेगा, कुछ कुछ नियम है, पहले आप ये करो, इतना कीर्तन में बैठोगे तब जाके आपको सिखाएंगे हम लोग, ये करेंगे। तो क्या होता है, वो देखते हमको आ जाता है, अरे बट वो हमारा नेक नहीं है, वो हमारा वो स्किल नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना होगा मेरा क्या क्वालिटी है जो मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूं, दैट इज द रियल थिंग। एंड इन वॉइस लाइफ ये आपको ढूंढना होगा, क्या वो मेरे अंदर कला है जो मैं भगवान को अर्पित कर सकता हूं। मे बी सिंगिंग, मे बी लेक्चर गिविंग, मे बी शास्त्रीय स्टडी, मे बी मैनेजमेंट, मे बी प्रीचिंग, वॉट एवर, एंड कंट्रीब्यूट दैट। तो उससे क्या होगा, आपको भी नरिशमेंट मिलेगा और कंट्रीब्यूशन भी अच्छा होगा। बट जब मिसमैच होता है ना, उसको कुछ म्यूजिक का सेंस नहीं है, इतना बेसुरा वो आवाज़ है उसकी, इन द सेंस जो भी, और उसको आप पकड़ा दियो, ये लीड सिंगर बना दिए उसको, और उसको मृदंग पकड़ा दिए ठा करके, कैसे करेगा वो? या जिसका मैनेजमेंट में नेक नहीं है, कुछ नहीं है, और आप उसको मैनेज कर लगा दियो भाई। तो ऑफकोर्स ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का भी चीज़ें है। तो किसकी क्या कला है ये ढूंढना, एक तो सीनियर का काम है, मैनेजर का काम है, और दूसरा आपका भी काम है। तो इसीलिए क्या है, इसलिए बुक रीडिंग भी आप जो बोल रहे हो, नो डाउट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू प्रे टू प्रभुपाद टू गिव दैट, बट जितना आपसे होता है उतना ही कीजिए। अननेसेसरी अपने आप को, मैं तो बोल, मेरा पर्सनल ये, आप इधर आपके काउंसलर आपको बता सकते हैं एक्स्ट्रा, बट धीरे धीरे आगे बढ़िए। आप सोचोगे भी 1 घंटा में मैं जो है पूरा प्रभुपाद जी का बुक पढ़ के एकदम पी जाऊंगा इसको, और एकदम बैठ के आप देखिए नोट्स कई लोग, माइक्रो मैनेजमेंट, आज तो पूरा इसको खोद डालूंगा मैं, इसमें से नेक्टर निकाल के लाऊंगा, होगा ही नहीं हमसे, वो नहीं होगा हमसे। जैसे मेरे साथ भी, हम मुंबई से आ रहे हैं, 24 घंटा का रास्ता है राउरकेला,
तो मैं कई बार सोचता हूँ जैसे राधेश्याम लोग 8-8 घंटा पढ़ते हैं, मैं भी एक किताब लेके जाऊँगा और 8 घंटा पढ़ूंगा पूरा एक जगह बैठ करके, पूरा दुनिया को हो जाऊँगा। बट अपना उतना है ही नहीं कैपेसिटी भाई। आधा घंटा पढ़े फिर तो माइंड घूमने लग जाता है और फिर बढ़िया वो बिस्तर रहता है। और आजकल क्या हम लोग स्लीपर में आप ट्रैवल नहीं कर सकते जर्नी, तो एसी रहता है, तो बढ़िया कंबल भी रहता है, चादर भी रहता है, तो ऐसा लगता है चलो थोड़ा 5 मिनट नैप लेता हूँ, फिर बैठ के मैं 2 घंटा और पढ़ाई करूँगा। 5 मिनट नैप लिए, 4 घंटा सो गया, उठ गए, 4 घंटा सो गए, फिर उठ, कोई बात नहीं, ट्रेन जर्नी है, थोड़ा थक गया हूँ मैं, एक ही समय तो मिलता है मेरे को आराम करने का, ट्रेन, ऐसे तो हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। माइंड है, मानेगा ही नहीं वो चीज़ें। कितनी बार मैं ट्राई कर लिया, मानता ही नहीं है माइंड। फिर हम लोग क्या, फिर मैं एक्सेप्ट कर लिया भाई ठीक है, मेरा इतना औकात नहीं है, जितना अपना है उतना कर लो काफ़ी है, और खुश रहो, जितना आप कर सक रहे हो उसमें खुश रहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बी हैप्पी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, डोंट बी इन एंजाइटी। अब प्रीचर लोग होता है ना, अरे मेरे 5 लड़के, जैसे हमारे एक प्रीचर थे यहाँ पर वॉइस में ही नाम नहीं बोलूँगा वो 3 लड़कों को प्रचार किए और वो बोले, जब हम काउंटिंग ले बैठते ना, कितना आ रहा है तुम्हारे कितने आ रहे हैं शिफ्टिंग के लिए, बोले, प्रभु जी 3 लोग लिख लो मेरा नाम। 3 लोग अंदर कल बैग पकड़ के आ रहे हैं लेने के लिए। अब ये नेक्स्ट दिन गए तो वो बेचारे मना कर दिए, कुछ तो हुआ होगा ये, तो उस दिन शाम को ये बैग पैकिंग कर रहा था मैं बोला प्रभु जी क्या हो गया, बोला मैं जा रहा हूँ बाहर। बोला क्यों, बोला इन लोगों ने धोखा दिया मेरे को, 1 साल प्रचार किया प्रभु जी, इतना मेहनत किया लोगों ने, मैंने कितना अपना डिनर स्किप किया है, कितने क्लासेस बंक मारे, इनको जा के नालायकों को मैंने पढ़ा करके पूरा सारा प्रोग्राम अटेंड कराया, संकल्प कराया, स्फूर्ति कराया, हाँ उत्कर्ष कराया, आज शिफ्ट में क्या फायदा ऐसे प्रचार का। मैं बोला अरे ये तो गए, तुम क्यों जा रहे हो, इतना इमोशनल हो गए थे वो। फिर उनको रोका ठा करके, तो ये प्रचार थोड़ी है कि आप ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि हाँ, तो आप लोग क्लास दे रहे हो, बोल रहे हो आई वॉन्ट एवरीवन टू बी हैप्पी, यू नो हाउ टू बी हैप्पी। वो बोलेगा वेट फर्स्ट यू बी हैप्पी, समझ रहे हो ना, फर्स्ट यू बी हैप्पी देन यू टीच अस हाउ टू बी हैप्पी। सो ये हो जाता है, इसलिए माई रिक्वेस्ट इज दैट डोंट नो अननेसेसरी स्क्वीज योर कृष्णा कॉन्शियस लाइफ लाइक दैट। थोड़ा एंजॉय, मस्ती मजाक हो, थोड़ा आनंद हो, थोड़ा ये हो तो मजा आएगा। Enjoy Krishna consciousness, relish it, and then distribute. Then you will be happy, you'll be happy. Yeah. So thank you so much. Very nice to be here. Anyhow, now Raishamu is coming. Now you will have more feast of lectures and अभी तो आपके दिन पूरा खुलने वाला है, 3-4 दिन जो प्रभु जी यहाँ रहेंगे अभी पूरा रंगारंग। So take best of his association. This man is not an ordinary person. Please remember this point. ये व्यक्ति बहुत सिंपल दिखते हैं बट ही इज़ रियली ऑन अ वेरी एडवांस लेवल ऑफ भक्ति, वेरी एडवांस लेवल। हम सब तो क्या बोल बाल के अपना चला रहे धंधा पानी जो भी है, थोड़ा ही है, बट प्रभु जी हैज़ रियली प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी नाइसली। सो टेक एसोसिएशन ऑफ प्रभु जी, रियली मोमेंट एसोसिएशन, लव माता साधु संग सर्व सिद्धि होए। Let us thank Prabhuji for his wonderful class. Prabhuji spoke about how we are simultaneously patient as well as doctor, and many realization, many practical point Prabhuji spoke. So let us thank Prabhuji for giving his valuable time by loudly chanting 3 times. We request devotee Prabhuji to, whenever he visit Raurkela or on the way to Mayapur, please give his time again. Hare Krishna.